ایک چھوٹا سا سوال، کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آج کا کلام خدا کا ٹاپک کیا ہے؟ سبت کا دن آپ نے بولا۔ سبت کا دن، بالکل ایسا ہی ہے۔ آج کا کلام خدا کا ٹاپک ہے خداوند کا پاک سبت۔ اب جب ہم دیکھتے ہیں خداوند کا پاک سبت تو اس کے لیے مرکزی آیت ہم وہی رکھیں گے جو گزشتہ بائبل سٹڈی میں ہم نے رکھی، اور ہم ایک ہی آیت کو مرکزی آیت بناتے ہیں اور اسی کو پڑھتے جا رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مین مقصد یہ ہے بتانے کا کہ ہمارا زندہ خدا، ہم جس زندہ خدا کو مانتے ہیں، وہ ہمیں پیدائش ہی سے کب کی خبر دیتا ہے؟ آخرت کی خبر دیتا ہے۔ پیدائش ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیدائش پہلے باب میں ہی وہ مکاشفہ کی باتیں ہمیں بتاتا ہے۔ پیدائش پہلے باب کے اندر ہم نے پہلی آیتوں میں دیکھا کہ خدا ہمیں آخرت بتا رہا ہے، کہ جو مکاشفہ 21-22 باب میں ہونے کو ہے۔ تو ہم گزشتہ 3 ایپیسوڈ میں 3 پارٹس میں یہ سیکھ چکے، اور آج جو پیدائش پہلے باب پہ ہم چوتھا پارٹ کرنے کو ہیں، چوتھا حصہ کرنے کو ہیں، وہ ہے خداوند خدا کا پاک سبت۔ تو مرکزی آیت وہی رہے گی ہماری، مقدس یسایہ نبی کی معرفت لکھا گیا خداوند خدا کا پاک سخن آتشی کلام، اور اس کا 46واں باب، اس کی 9ویں سے 10ویں آیت کوئی بھی اونچی آواز میں پڑھ سکتا ہے۔ دوبارہ سے یسایہ کی کتاب، اس کا 46واں باب، دا بک آف آزایہ چیپٹر 46 ورس 9 till 10۔ یسایہ کی کتاب، اس کا 46واں باب اور اس کی 9ویں سے 10ویں آیت۔ اس کا 41 والا 46 جی، مسز جیسیکا کے ساتھ مل کر ہم پڑھیں گے۔ پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں۔ میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ آمین۔ کلام خدا کا پڑھا، سنا، سمجھا اور قبول کیا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت کا سبب ہو۔ خدا کا شکر ہو، آمین۔ اس آیت مقدسہ میں ہم 10ویں باب کی آیت، اس کی پہلے حصے پر غور کریں گے جو ہمیشہ ہی کرتے آ رہے ہیں، اور 9ویں حصے کی آیت، اس کے پہلے حصے پر غور کریں گے، جہاں 9ویں حصے پہلی آیت میں لکھا ہے پہلی باتیں جو قدیم سے ہیں یاد کرو۔ خدا ہمیں قدیم میں لے کے جانا چاہتا ہے، وہ ہمیں پیچھے لے کے جانا چاہتا ہے کہ ہم پیچھے جائیں اور باتوں کو یاد کریں۔ اور 10ویں آیت کے پہلے حصے میں لکھا ہے جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ ابتدا لفظ یہاں پر لکھا ہے، لیکن جب آپ ہیبریو لینگویج میں دیکھتے ہیں تو یہاں پر بیراشیت لکھا ہے، یعنی کہ پیدائش یعنی کہ جب کائنات میں کچھ نہیں تھا، تب پیدائش ہی سے آخرت، جب کائنات میں کچھ نہیں ہوگا تب کی وہ خبر دیتا ہے۔ اور ہم نے جانا پہلے ایپیسوڈ میں، دوسرے ایپیسوڈ میں، تیسرے ایپیسوڈ میں کہ کیسے زندہ خدا ہمیں پیدائش پہلے باب دوسری آیت، پہلی آیت اور تیسری آیت کے اندر ہی آخرت کی خبریں دے رہا ہے۔ اور ان 3 آیتوں پہ ہم نے 3 گھنٹے کی سٹڈیز لی، اور خداوند کے فضل سے ہم مستفی ہوئے۔ اور آج جو ہم چوتھا پارٹ کرنے کو ہیں، ایک بار پھر سے ہم دیکھیں گے پیدائش ہی کی کتاب کو۔ آپ میرے ساتھ نکال سکتے ہیں خداوند خدا کے پاک سبت، جو آج کا مضمون ہے۔ اب جب لفظ سبت کی بات ہم کرتے ہیں تو میں کچھ آپ سے پوچھوں گا، آپ مجھ سے پوچھئے گا، اور اگر ہمیں سمجھ نہ آئے تو خدا کا روح ہے جو ہمیں سمجھانے کی قدرت رکھتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو چھوٹی سی ایک بات، سبت کا دن کون سا ہے؟ سیٹرڈے، اور فرائیڈے کی شام سے لے کے سیٹرڈے کی شام۔ فرائیڈے کی شام سے لے کے سیٹرڈے کی شام، جی، سنڈے، جی، لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا فرائیڈے کی شام سے لے کے سیٹرڈے کی شام تک۔ اب وہ کیسے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیسے ہے؟ نہ فرائیڈے ہے، نہ سیٹرڈے ہے، نہ سنڈے ہے۔ فرائیڈے کی شام سے لے کے سیٹرڈے کی شام تک یہ کیسے ہے؟ یہ ایسے ہے کہ جب آپ پہلے باب کی سٹڈی کرتے ہیں تو اگر تو ہم
رومن کیلنڈر گریگورین کیلنڈر کے حساب سے چلیں تو ان کی رات 12 بجے ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، لیکن خدا کے حساب سے جب چلتے ہیں آپ تو وہ دیکھیں، نہ یہ کلام یہودیوں کا ہے، نہ اسرائیلیوں کا ہے، نہ عیسائیوں کا ہے، اور نہ مسیحیوں کا ہے، یہ کل کائنات کا کلام ہے اور یہ خود زندہ خدا ہے۔ اس کے رول ریگولیشن پہ جب ہم چلتے ہیں تو اس کے رول ریگولیشن کے حساب سے اس کا ٹائم جو چینج ہوتا ہے وہ شام سے ہوتا ہے، شام ہوئی صبح ہوئی سو اب کیا یہ رول کسی نے کبھی آزمایا کہ شام کو ڈیٹ چینج ہو جائے یا شام کو آپ کا دن بدل جائے؟ کبھی آپ نے سنا ایسا؟ اس وقت دنیا پہ راج کر رہی قوم بنی اسرائیل، وہ یہ کرتے ہیں۔ سمپل بات ہے کہ نہیں؟ قوم بنی اسرائیل اس وقت دنیا پر راج کر رہی ہے، وہ یہ کام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ آپ جیسے، میرے جیسے، یا پوری دنیا جیسا وہ رات کو 12 بجے ڈیٹ کیوں نہیں چینج کرتے؟ شام کو کیوں کرتے ہیں؟ شام کو وہ اگلا دن کنسیڈر کیوں کر لیتے ہیں؟ سادہ سی بات، کیوں کرتے ہیں وہ؟ سب سمپل سی بات ہے، کیونکہ وہ کسی پاسبان کا حکم نہیں ہے، زندہ خدا کا حکم ہے۔ زندہ خدا کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ شام ہوئی صبح ہوئی سو پہلا دن۔ اب آپ دیکھیں جب وہ زندہ خدا کے پاک کلام پہ چل رہے ہیں تو خدا نے انہیں بلیسنگز بھی ایسی دی ہیں کہ جو اس کائنات کے اوپر وہ حاوی ہیں۔ اندر چیئر ہے، آپ دیکھتے ہیں ان کی طاقت کا جب اندازہ لگاتے ہیں آپ۔ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے مثال کے طور پہ آپ کے ہاں پاکستان میں کے الیکٹرک ہے، وابڈا کا بجلی کا سلسلہ ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ بجلی جو ہے قوم بنی اسرائیل استعمال کرتی ہے؟ ہاں، تو کون سی کرتی ہوگی؟ اپنی بھی کرتی ہوگی، تو مطلب مین میڈ، جو مین میڈ بجلی ہے کیا وہ استعمال کرتے ہیں؟ نہیں کرتے۔ وہ کون سی استعمال کرتے ہیں؟ وہ سولر پینل والی استعمال کرتے ہیں۔ سولر پینل والی کیوں استعمال کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارا زندہ خدا آسمان سے ہمیں قدرت دے رہا ہے، ہم اس گرمی سے، اس کی حرارت سے ہی بجلی پیدا کرنے کی عقل رکھتے ہیں، اور یہ سولر پینل والا سسٹم جو ہے وہیں سے آیا۔ ان کے ہاں یہ تارے وارے نہیں ہیں، صحیح ہے؟ تو کہنے کا مقصد یہ وہ ٹوٹلی خدا پر توکل کرتے ہیں۔ ایگریکلچرل سسٹم، ذرات کا جو سسٹم ہے وہ کائنات میں سب سے کامیاب اسرائیل کا ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی گوبھی جو ہے وہ اسرائیل سے برآمد ہوئی 32 کلو کی۔ آپ ان کے ذرات کا کنسیڈر دیکھیں، ان کا کانسیپٹ دیکھیں کہ کیسے وہ زندہ خدا کی چیزوں پر، اس کے دیے ہوئے موسموں اور اس کی دی ہوئی قدرت پر عمل کرتے ہیں۔ اس کی وجہ سے بدولت دیکھیے آج وہ دنیا پر راج کر رہے ہیں۔ اتنے سے آپ کو پتا کراچی کی کل آبادی کتنی ہے اندازاً؟ کتنی؟ 2 کروڑ۔ اور کوئی 2 کروڑ تھی، 2.5 کروڑ تھی، 3 کروڑ تھی، ہم 2 کروڑ لے دیتے ہیں، بالکل صحیح ہے، 2 کروڑ تھی۔ ہمارے کراچی شہر کی کتنی تعداد ہے؟ 2 کروڑ۔ پوری قوم بنی اسرائیل کی 1 کروڑ بھی تعداد نہیں ہے۔ 96 لاکھ ہیں وہ، جن میں سے 20 لاکھ کرسچنز ہیں اور 20 لاکھ مسلمز ہیں۔ یہ غالباً 60 لاکھ ہیں۔ کتنے لاکھ ہیں؟ 60 لاکھ ہیں، اور آپ ان کی پاور دیکھیں کتنی دنیا سے لڑ رہے ہیں وہ، اور فاتح ہیں۔ میں ابھی سسٹر سے بات کر رہا تھا یسوع مسیح کی ڈیٹ آف برتھ کی۔ اب آپ سوچیں ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارا ٹائم کب چینج ہونا چاہیے، تو کیا خدا ہم پر یہ بھید کھولے گا کہ میں زمین تے کدوں آیا جسم لے کے؟ نہیں کھولے گا۔ ہم نے جو سیکھا ہے، ہم نے پاسبانوں کے منہ سے جو سیکھا ہے وہ سیکھا ہے۔ میں اسی لیے تو آپ اکثر دیکھتے ہیں ڈینومینیشنز کے خلاف بات کرتا ہوں، اسی لیے کرتا ہوں۔ یہ گہرے بھید میں کوئی ماں کے پیٹ سے تو نہیں سیکھ کے آیا، اس کو پڑھ کے ہی سیکھے نا۔ ہماری آپ سے کوئی ہدیے کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی، ہماری آپ سے کوئی یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ روز آؤ، ہماری آپ سے کوئی یہ بھی ڈیمانڈ نہیں ہوتی کہ آپ ہمیں اپنی دیا یقی بھی دیں۔ ایز اے ٹیچر ہوتے ہوئے ہم ان پاسبانوں کو سب کچھ دیتے ہیں، لیکن کیا وہ ہمیں وہ چیز دے رہے ہیں جو ہمیں چاہیے؟
یہ میں نے آپ کے سامنے سمپلی باتیں رکھی اور آپ کے سامنے پڑھی اور آپ کے گھروں کے اندر ہے کہ شام ہوئی صبح ہوئی سو پہلا دن. یہ خدا کا اصول ہے، لیکن ہمیں اس کا نہیں پتا. ہمیں ایون یہ بھی نہیں پتا کہ یہ استعمال کون کرتا ہے. اور آپ کے سامنے میں نے 2 مثالیں رکھی ہیں، ایک سورج کی، بجلی کیسے وہ بناتے ہیں، اور دوسرا وہ ڈیٹ جب چینج کرتے ہیں. تو یہ 2 مثالیں دی ہیں، تو آپ دیکھیں اسرائیل کی پاور کو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم ان چھوٹی چیزوں کو نہیں جانیں گے تو وہ اتنا بڑا بھید ہم پہ کیسے کھول دے گا کہ میں زمین پر یسوع مسیح کی شکل میں، یا میرا بیٹا یسوع مسیح جو ہے وہ زمین پر کس دن پیدا ہوا. نہیں کھولے گا وہ بھید ہم پہ. آپ بڑے بڑے پروفیسرز کو دیکھ لیں، بڑے بڑے اسکالرز کو دیکھ لیں، ہاں اینڈ آف دا ڈے وہ یہ کہہ دیں گے کہ 25 کو نہیں تھے پیدا ہوا، لیکن ریئل ڈیٹ وہ یہی کہیں گے کہ نہیں لکھی. تو جب ہم کہتے ہیں نا نہیں لکھی، تو ہم خدا کے کلام کو انکمپلیٹ کہہ رہے ہوتے ہیں. سب کچھ لکھا ہے اس میں مہینہ بھی لکھا ہے، اس میں سال بھی لکھا ہے، اس میں دن بھی لکھا ہے. لیکن میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کے گہرے بھید اور مکاشفات یا تو آپ کو حاصل کرنے پڑتے ہیں یا پھر آپ کو اس سے چھیننے پڑتے ہیں. تو اس کے لیے آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہونا بڑا ضروری ہے. آپ جب اپنے باپ سے کچھ حاصل کرتے ہیں یا چھینتے ہیں تو آپ کا اس سے تعلق ہوتا ہے اس کے ساتھ. آپ ایسے ہی نہیں کر سکتے. تو تعلق بنانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. آئیے جناب، اپنے بگے میرے حل کر لو. ٹھیک ہو گیا. تو سبت کا دن جو ہے وہ ہے ہفتے کی جمعے کی شام سے لے کے ہفتے کی شام تک، تاکہ ہم خدا کے کلام سے یہ سیکھ سکیں. اب جمعے کی شام سے لے کے ہفتے کی شام تک بھی کیوں؟ کیونکہ جمعہ اور ہفتہ ہم جو لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ یہ جمعہ، ہفتہ، لفظ ہفتہ، اتوار، جمعہ، پیر، منگل، بدھ، وینسڈے، تھرسڈے، ٹیوزڈے، فرائیڈے، یہ بائبل مقدس کے اندر ہیں کہ نہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ یہ آپ کو کس نے دیے؟ یہ آپ کو اسی نے دیے جس کو ہم دن رات بت پرست کہتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں. میں وہی سسٹر سے بات کر رہا تھا، کڑی پنڈ چو نکل آئی پر پنڈ کڑی چو نہیں نکلیا. ہم ان کے خلاف باتیں تو کرتے ہیں لیکن کام بھی ان کے جیسے کرتے. پتہ کیوں؟ نوٹ آتا ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی، پیسہ آتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ نام جو ہے، تھور دیوتا دیکھا آپ نے؟ ایونجرز مووی دیکھی ہوگی. یہ تھرسڈے جو ہے تھور دیوتا کا نام ہے. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں وینسڈے، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں سیٹرن. سیچرن، آپ نے پلانٹس کے نام سنے ہوگے، مرکری، وینس، ارتھ، مارس، جوپیٹر، سیچرن، یورینس اینڈ نیپچون. اب سیچرن جو ہے یہ سب سے بڑا سیارہ ہے. تو سیٹرڈے جو ہے وہ اس کے نام پہ ان کا دیوتا ہے، دا گاڈ آف کریشن یا دا گاڈ آف ڈسٹرکشن، پیدا کرنے کا اور تباہی مچانے کا دیوتا. اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ منڈے جو ہے یہ مون دیوتا، چاند دیوتا، سورج دیوتا. آپ دیکھتے ہیں سنڈے، حالانکہ وہ لفظ ہونا چاہیے تھا SON، ایک ہوتا ہے SUN، سنڈے، سورج کا دن، بٹ ہونا یہ چاہیے تھا SON، یسوع کا دن، بیٹے کا دن، کیونکہ بیٹا اس دن جی اٹھا تھا. تو خیر یہ آپ کے سامنے چیزیں ہیں. میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو استعمال کرنا چھوڑ دیں. جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ انجیل کی منادی سے ہو سکتی ہے آپ ان کو کریں استعمال، لیکن ذہن میں یہ رکھیں کہ یہ دنیاوی چیزیں ہیں. ان دنیاوی چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے. یہ سماجی چیزیں ہیں، یہ سیکولر چیزیں ہیں. ان کو سیکریٹ یا ان کو مسا شدہ چیزیں نہیں آپ کہہ سکتے. مسا شدہ چیزیں آپ کے سامنے ہیں. پہلا دن، دوسرا دن، تیسرا دن، چوتھا دن، پانچواں دن، چھٹا دن اور بائبل میں 7ویں دن کو 7واں نہیں کہا گیا. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. کیا کہا گیا؟ آپ جانتے ہیں اس کی فضیلت، اس کی قدرت کیا ہے؟ میں نے رومیل بھائی تھے، ان سے یہ ایک ڈیمانڈ کی تھی. میں نے کہا سر آپ کراچی ایڈوینٹسٹ سے ہیں، میں آپ کو ایک آپ کو گارنٹی سے بات کہتا ہوں کہ آپ جو گہرے بھید سیکھیں گے سبت پہ، کراچی ایڈوینٹسٹ بتانا تو دور کی بات، وہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ خدا کے کلام میں اتنے بھید ہیں اس سبت پہ. اور یہ خداوند کا پاک سبت ہے. کس کا سبت ہے؟ خداوند کا پاک سبت. یہ کسی عام انسان کا، کسی شخص کا نہیں ہے.
لیکن جنہوں نے اتوار کیا ہوا ہے, کس کس نے کیا اتوار؟ کیتھولک جو کہتے ہیں, آپ جس چرچ میں جاتے ہیں انہوں نے نہیں کیا, سب نے کیا ہوا ہے. آپ سمجھتے اس باتوں کو؟ یہ سب نے کیا ہوا ہے. کاہے کا پروٹیسٹنٹ, وہ بھی ہفتے کو کرتے ہیں نا میرے بھائی, جمعے کی شام کو, بس یہیں تک ہے کام. داؤد نبی کہتا ہے شام صبح دوپہرانہ میں فریادہ گزار, وہ تو 24 گھنٹے کر رہا ہے. دانیل نبی دن میں 3 بار خدا کی حمد و ثنا عبادت کرتا ہے. تو پھر کہاں گیا سب بات؟ یہی چیزیں ہیں, یہی چیزیں سمجھانے والی. ہمیں یہی چیزیں سمجھ میں نہیں آتی. پھر ہم دن میں روٹی 3 بار کھا جاتے ہیں, کلام ہاں ادھر نہیں جانا ہے. یہاں سبت بنایا اتوار دا, یہاں سبت بنایا ہفتے دا, یہاں سبت بنایا ہفتے تو ادھا اتوار, ہفتے دا تے جمعے دا. لیکن روٹی ہم 3 ٹائم کیسے کھا رہے ہیں؟ وہ کہتا ہے زندگی کی روٹی میں ہوں. یہ کتنی بار کھانی چاہیے؟ سوال جہاں پہ ہو آپ نے وہیں پہ کر لینا ہے. آخر میں کرنا ہو آخر میں بھی کر سکتے ہیں. تو کئی لفظ ایسے ہیں بائبل مقدس کے اندر, وہ کافی ملتے جلتے. عبرانی زبان کی یہ کوالٹی ہے, اپنے اپنے فون سائلنٹ پہ لگا لیں. وہ کال ہو تو وہ سن سکتے ہیں, لیکن فون کا ٹر نہ کرے. تو آپ دیکھتے ہیں لفظ آسمان ہے اردو میں, تو عبرانی میں ہاشمان کہا جاتا ہے. ہم ٹرین میں آ رہے تھے تو ایک بچے کا نام تھا, اس کی والدہ بار بار اسے کہتی تھی چشمے والا جو تھا, تو یہ عبرانی لفظ کا نام ہے. گناہ لفظ ہے, گناہ لفظ عبرانی زبان میں خطا آ جاتا ہے. خطا کی قربانی آپ نے سنا ہوگا. قربانی لفظ ہے تو عبرانی زبان میں قربان آ جاتا ہے. ہیکل لفظ عبرانی زبان میں تو اردو میں بھی ہیکل ہی ہے. ہاللویا لفظ ہے تو وہ اردو میں ہی ہاللویا اسے لکھ دیا گیا ہے. اور لفظ جو سبت ہے, سبت لفظ جو ہے یہ عبرانی زبان میں شبیت کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے؟ عبرانی زبان کا ہے کہ یہ پلس پوائنٹ آپ کہہ سکتے ہیں, یہ خدا کی قدرت ہے کہ اس کے الف بے پے کے بھی مطلب ہوتے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ شین ہے, 3 لفظوں سے مل کر بنا شبیت. شین, بیت اور تاف. شین کہتے ہیں شمع, شمع کا مطلب کیا ہے؟ شمع, سن اسرائیل, سننا. شمع کا مطلب ہے سننا. بیت کا مطلب کیا ہے؟ جیسے آپ نے لفظ سنا ہو بیتیل یا بیت الہم. بیتیل, بیتیل کا مطلب ہے, ایل کہتے ہیں الوہیم خدا کو, بیت کہتے ہیں گھر کو, خدا کا گھر. لحم, لحم کہتے ہیں روٹی کو. بیت لحم ایکچولی لفظ بیت لحم اردو میں آ کے بیت لحم ہو جاتا ہے. تو لحم کہتے ہیں روٹی کو, اور بیت کہتے ہیں گھر کو, روٹی کا گھر. تو یسوع مسیح روٹی دے گھر چ پیدا ہے, وہ خود روٹی بن گیا, چارہ بنا, کھایا. تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح بیت لفظ جو ہے, شین کا مطلب ہے شمع, سننا. بیت کا مطلب ہے گھر, اور تاف کا مطلب ہے توریت. تاف کا کیا مطلب ہے؟ توریت کسے کہتے ہیں؟ شریعت. ایک اور لفظ بتاتا ہوں, شریعت کو. شریعت کا لفظ سنتے ہی ہمارے کئی پاسبان ایسے ہیں, ان کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے, مجھے تو پتہ نہیں, لگتا ہے ان کو مرغی کہہ رہا ہے, مرغی کا دورہ پڑ جاتا ہے. ان کے ذہن میں ڈائریکٹ یہودی آ جاتے ہیں یا اسرائیلی آ جاتے ہیں. شریعت لفظ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا لفظ کا مطلب کیا ہے؟ شریعت لفظ کا مطلب موسیٰ کو دی, آپ کو دی, مجھے بھی دی, خدا کے احکام. شریعت لفظ کا مطلب ہے, آسان لفظوں میں آپ کو بتاتا ہوں, نصیحت کرنا. مثال کے طور پہ آپ کو خدا کہہ رہا ہے بھائی اپنے ماں پیو کی عزت کریں, کوئی غلط کہہ رہا ہے. آپ کو کہہ رہا ہے بھائی صاحب گال سن, چوری نہ کریں, غلط کہہ رہا ہے, نصیحت کر رہا ہے نا آپ کو. آپ کو کہہ رہا ہے بھائی صاحب ایک ہی خدا کو ماننا. آپ کو کہہ رہا ہے بھائی صاحب روز بائبل پڑھ. آپ کو کہہ رہا ہے خون نہ کرنا. آپ کو کہہ رہا ہے یہ, آپ سمجھ رہے ہیں, نصیحت کر رہا ہے آپ کو. یہی نصیحت ہمارا باپ بھی کرتا ہے, ہماری ماں بھی کرتی ہے, ہماری بھائی بھی, بہن. تو شریعت لفظ کا مطلب جب آپ لیتے ہیں لفظ توراہ, توراہ لفظ کا مطلب ہے قوانین تو ہیں, لیکن اس کا مطلب ہے نصیحت. کیا کسی کو کرنا؟ نصیحت کرنا. اب اس کا پورا جب آپ مرج کرتے ہیں اس کو, شین شبیت, شین بیت اور تاف, سننا, گھر, شریعت. کیا میچ کر کے دیکھتے ہیں آپ؟ خدا کے گھر میں خدا کی شریعت کو سننا.
اب شریعت جو ہے، میں پھر سے کہہ رہا ہوں، شریعت جو ہے سن کے کافی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن یہاں پر زندہ خدا کہہ رہا ہے کہ شریعت لفظ کا عبرانی زبان میں مطلب ہے تورات، تورا کا مطلب ہے نصیحت کرنا. نصیحت کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ایڈوائز، ایڈوائزری اور کاؤنسلنگ. کاؤنسلنگ کرنا. آپ کو پتہ ہے کہ یسائی کی کتاب میں ذکر ہے، جو یسوع مسیح پیدا ہوں گے تو ان کے بارے میں لکھا ہے وہ خدائے قادر ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ، لیکن اس سے پہلے دو لفظ لکھے ہیں، عجیب اور مشیر. عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ. یہ پانچوں کیٹیگریز جو ہیں، پانچوں پراپرٹیز جو ہیں، یہ زندہ خدا کی ہیں، اور خدا کنواری سے پیدا ہو رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اب اس میں ایک لفظ ہے مشیر. مشیر لفظ کو جب آپ انگلش میں دیکھتے تو وہ لکھتا ہے کاؤنسلنگ کرنا. کیا کرنا؟ کاؤنسلر. آئی ایم اے کاؤنسلر اینڈ آئی ایم گوئنگ ٹو کاؤنسلنگ یو. وہ کاؤنسلنگ کر رہا ہے آپ کو، وہ نصیحت کر رہا ہے آپ کو. یہی نصیحت کر رہا ہے آپ کو، توراہ سمجھا رہا ہے. کئی لوگ کہتے ہیں کہ شریعت کی صرف 5 کتابیں. 5 کتابیں اس لیے ہیں، اس کو تھوڑا ڈیفائن کرنا چاہیے. 5 کتابیں صرف اس لیے ہیں کہ خدا نے جتنے بھی قوانین دیے، احکام عشرہ دیے، کلام خداوندی دی، جتنے بھی اس نے نصیحتیں کی، وہ ان 5 کتابوں کے اندر ہیں. اگے بھی جو کاردا رہے نا تو پھر انہاں نوں دین دا فائدہ کی؟ آگے کچھ اور نہیں کرنا، صرف یہی کرتے رہنا. جو 5 کتابیں دی ہیں، لفظ شریعت، نصیحت، حکم، قوانین. ہم لوگ یہ فیس بک پہ اکثر چیلنج بھی کر چکے ہیں کہ خدا کی شریعت، ٹپیکل لفظ استعمال کرو، خدا کی شریعت 66 کتابوں میں سے ایسی کون سی ایک کتاب ہے جس میں نہیں ہے؟ کہتے ہیں نا شریعت ختم ہو گئی، شریعت ممسوح ہو گئی، یا اب شریعت کا دور نہیں، فضل کا دور ہے. تو میں اوپن چیلنج پہلے بھی کرتا رہا ہوں، ابھی بھی کرتا ہوں، آپ کے سامنے بھی کرتا ہوں، ہمارے آن لائن ویورز جو ہیں ان کے سامنے بھی کریں گے، کہ بائبل مقدس میں 66 کتابیں ہیں. 66 کتابوں میں ایسی کون سی ایک کتاب ہے جس میں خدا کی شریعت نہیں ہے؟ یا چلے اس کو اور وسیع کر دیتے ہیں، دنیا کا ایسا کون سا مذہب ہے جس کے اندر خدا کی شریعت نہیں ہے؟ تو انٹرنیشنل لیول پہ چلے گئے ہم لوگ. تو بائبل کا تو اس میں کچھ رہا ہی نہیں ہے. قرآن دیکھ لیں، گیتا دیکھ لیں، گرنتھ دیکھ لیں. خدا کے قوانین کچھ ہے آئیڈیا؟ کچھ کہنا چاہیں؟ بائبل مقدس میں ایسی کوئی کتاب نہیں ہے جس میں خدا کی شریعت نہ ہو. میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، مکاشفہ کی کتاب کی بات کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے مکاشفہ کی کتاب میں کون کون جائے گا آگ کی جھیل میں، دوسری موت میں، جو ابد تک رہے گی؟ میرے ساتھ سنیے گا. مکاشفہ کی کتاب 21واں باب اور اس کی 8ویں آیت میں لکھا ہے، مگر بزدلوں، بے ایمانوں، گھنونے لوگوں، خونیوں، حرام کاروں، جادوگروں، بت پرستوں اور سب جھوٹوں کا حصہ ان گندک کی جلنے والی جھیل میں ہوگا جو دوسری موت ہے. یہ سارے ہی باتیں تو شریعت کی ہیں. اس میں سے یسوع مسیح نے کون سی دی ہے آپ کو؟ جادوگر کہاں نظر آتے ہیں آپ کو؟ نئے عہد نامے میں، پرانے میں؟ سب سے پہلے سب آپ کو پیچھے ہی نظر آئے گا. اس نبی کی کتاب میں لکھا کچھ بھی نیا نہیں ہے، سب پرانا ہے. دوسرے لفظوں میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا، یہ کاؤنسلنگ کر رہا ہے آپ کو، خدا نصیحت کر رہا ہے. اگر آپ کہتے ہیں خدا بادشاہ ہے اور وہ ہم اس کی رعایا ہیں، تو بادشاہ اپنی رعایا کو کچھ تو بولتا ہوگا، گونگا تو نہیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ باپ ہے، تو باپ اپنے بچوں کو کچھ تو بولتا ہوگا، گونگا تو نہیں. گونگا بھی کچھ نہ کچھ کر کے بتا دیتا ہے، بھائی ایسے کر. تو ہم تو پھر زندہ خدا کو مانتے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں وہ ہمارا چرواہا ہے، تو ہم بھیڑوں کو کچھ تو کہتا ہوگا. تو جو کچھ کہتا ہے نا، یہی خدا کی شریعت ہے، اور یہی خدا کے احکام عشرہ، اور یہی کلام خداوندی، اور یہی خدا کی نصیحت ہے، کاؤنسلنگ ہے. جب ہم دیکھتے ہیں شبات خدا کے گھر میں آنا، خدا کی شریعت کو سیکھنے. اب اس کو اور ذرا ابراڈ میں لے کے جاتے ہیں. شریعت کو اگر میں کہوں کہ شریعت خدا کا کلام ہے، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں اس بارے میں؟ یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح. خدا کے منہ سے نکلا ہے تو خدا کا کلام ہی ہوا. کلام دوسرے لفظوں میں آپ کسے کہتے ہیں؟ خدا سے نکلی ہوئی. یسوع مسیح کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ شریعت کو ہم کلام بھی کہہ سکتے ہیں، اور کلام یسوع مسیح ہے، اور یسوع مسیح خداوند خدا ہیں. پہلے اور آخری آپشن کو لے لیں، شریعت
क्या खुदावन खुदा है? सुनिएगा मेरे साथ, सही कीजिएगा। ये मुकद्दस दाऊद नबी की मार्फत लिखी गई ज़बूर की किताब, उसका 119वां बाब। साढ़े तो सियाणा ते जिंदा खुदा दा सूरमा है, और ये इसने बड़ा ज़बरदस्त समझाया है। समझिएगा ये क्या कहना चाह रहा है। कौन सा बाब? नहीं नहीं, ज़बूर 119। आपने सुनना है इस पे, मैं आपसे पूछूंगा ये मैंने क्या बोला है। उसकी 50वीं आयत, उसका दूसरा हिस्सा जो है, पहली आयत पढ़ता हूं। मेरी मुसीबत में यही मेरी तसल्ली है। दूसरा हिस्सा क्या कह रहे हैं, सुनिएगा। कि तेरे कलाम ने मुझे जिंदा किया। आप समझते हैं खुदा ने हमें जिंदा किया? बाइबल बता रही है तेरे कलाम ने हमें जिंदा किया। कलाम यीशु मसीह है, कलाम खुदा के मुंह से निकला हुआ कलमा है, कलाम खुदावंद खुदा है, यीशु मसीह है, उसने हमें जिंदा किया। ऐसे ही है, कलाम जिंदा करता है। इसी के आगे देखिए, यही चैप्टर है जहां पर कुछ यूं लिखा है, और उसकी 93 वर्ष में लिखा है, सुनिएगा, आप निकालिएगा नहीं, देर लगाएंगे। जहां पर लिखा है, मैं तेरे कवानीन को कभी ना भूलूंगा। किनको कभी ना भूलूंगा? शरीयत को, नसीहत को, तौरेत को, तोरा को कभी ना भूलूंगा, क्योंकि तूने उन्हीं के वसीले से मुझे जिंदा किया है। पहला कलाम दे वसीले ਨਾਲ जिंदा कीता, ਹੁਣ कह रहे शरीयत दे वसीले दे नाल जिंदा कीता। ऐसे ही है, शरीयत में, कलाम में, फजल में, खुदा में, रूहुल कुदस में, यीशु मसीह में, बाइबल मुकद्दस में कोई फर्क नहीं है। ये कितने हुए हैं? चलो फिर से बोलता हूं, ये आपके टॉपिक पे है। यीशु मसीह में, पाप में, रूहुल कुदस में, शरीयत में, फजल में, बाइबल मुकद्दस में और किसी और कलाम में कोई फर्क नहीं है। ये तहरीरी कलाम है, आप समझ रहे? ये आपके पास तहरीरी खुदा, मैं इसे क्यों कहता हूं कि लिखा हुआ कलाम। वो शख्सी कलाम था, उसे भी ले लो, इसे भी ले लो, मसीह को भी ले लो, बेटे को भी ले लो, बाप को भी ले लो, रूह को भी ले लो, फजल को भी ले लो, और शरीयत को भी ले लो। इनमें कोई फर्क नहीं है। और कुलसों की किताब में लिखा है, मैं तुम्हें वो अहकाम अशरा देता हूं जो इंसान के पैदा होने से पेशतर खुदा के पास था। यानी ऐसे हुक्म जो इंसान अभी बना भी नहीं, उससे पहले ही खुदा के पास मौजूद है। जब इंसान नहीं था, उससे पहले जो था वो खुदा ही था, बेटा था, रूहुल कुदस था, और वो जो बोलते थे वो था, वो कलाम था। तो ये बताने का एक मकसद आपको ये है कि इसके गहरे भेद को समझिएगा। शबैत, सब्बत का लफ्ज का मतलब है कि खुदा के घर में खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के मसीह को सुनना, खुदा की निजात को सुनना, खुदा की शरीयत को सुनना, खुदा के कानून को सुनना, खुदा के हुक्मों को सुनना, ताकि हमारी जिंदगी सुधर सके। उसने कहा, ए कौम बनी इसराइल, मैंने तुझे अपने कलाम और शरीयत इसलिए दी क्योंकि तू सब कौमों से अनोखी बने। क्या बने? और अनोखी थी वो बच्चों की कुर्बानियां करती थी, ये नहीं थे करते। वो अपनी ईदें मनाती थी, खुदा ने इसे अपनी ईदें दी। वो अपने नए चांद नए साल मनाते थे, खुदा ने अपने नए चांद नए साल दिए। उन्हों दी टोर अलग सी थे, इन्हों दी टोर अलग सी। खुदा ने पूरी दुनिया से उनको अनोखा बनाया। तो जब हम देखते हैं सब्बत लफ्ज पर, तो शबैत लफ्ज जो है वो इसका मतलब बनता है कि खुदा के घर में खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के घर में खुदा के कलाम को सुनना। अब सवाल एक पैदा होता है, सिर्फ सुनना? सुन इसराइल, खुदावन खुदा तेरा एक ही खुदा है। इस कृष्णा 6 बाब जो हमारे इसराइली बहन भाइयों का कलमा भी है, होना तो साडा भी चाहिए। ते खुदा का कलाम है, प्लस ये बात खुदा की शरीयत है, खुदा का हुक्म है। मिसाल, अच्छा शरीयत में मैं थोड़ा सा आपको और बता दूं। मिसाल के तौर पे बाइबल मुकद्दस में लिखा है यीशु मसीह आने वाला है। नए आयत में क्या आयत है ना, पुराने को फिलहाल छोड़ दे, नए आयत में क्या आयत में क्या है? यीशु मसीह आने वाला है। आप मानते हैं इस बात को, ये खुदा का कलाम है, तो ये खुदा का हुक्म भी तो है, इसी को तो शरीयत कहते हैं। उसने कहा सब कौम में जा रहे हैं, बाप और बेटे, तो ये शरीयत ही तो दे रहा है। वो किस किताब में नहीं है शरीयत? हर एक में है। तो आप जब इस तरफ आते हैं कि सिर्फ सुनना, इब्रानी जुबान में जब आप लफ्ज सुनने को लेते हैं ना, सुन है इसराइल तेरा खुदा खुदा है कि खुदा है, या फिर खुदा के कलाम को सुनना, वो सुनने लफ्ज का मतलब इब्रानी जुबान में होता है सुनना और अमल करना। खाली सोन नहीं लेना, इधर सुन ले इधर काट ले, सुनना और उस पर अमल करना। आप मुकाशवा पहले बाब में देखते तो वहां पर लिखा है,
मुबारक है वो जो खुदा के कलाम को सुनता अमल करता है। अमल बहुत जरूरी है, और लानत उस पर जो खाली सुनता ही है। इसका ऑपोजिट तो यही होगा ना। तो जो अमल नहीं करता सिर्फ सुनता ही है, खुदा की लानत है उस पर। और आगे जब आप देखते हैं कि बाइबल मुकद्दस में आगे बढ़ते हैं, सब्बत जो है आप जानते हैं खुदा ने 10 हुक्मों में तहरीर किया हुआ है, कौम बनी इसराइल को दिया। तो मैं एक छोटा सा सवाल करता हूँ, सब्बत सबसे पहले किसको दिया खुदा ने? पहला दो गल्ला करके मैं कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं। आप जानते हैं सारा, अभी भी आपने पढ़ा भी है। पैदाइश में किसको दिया गया? आदम को दिया गया। कैसे? आप देखते हैं पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब पहली तीसरी आयत, सुनिएगा बस गौर से। इस कलाम खुदा में क्या लिखा है? अब आप और ज्यादा गहराई की तरफ जाएंगे, क्योंकि अब आपकी बेस बन चुकी है। यहां पर लिखा है, सो आसमान और जमीन और उनके कुल लश्कर का बनाना खत्म हुआ, और खुदा ने अपने काम जिसे वो करता था 7वें दिन खत्म किया। कितने दिन? 7वें दिन खत्म किया। और अपने सारे काम से जिसे वो कर रहा था 7वें दिन फारिग हुआ, और खुदा ने 7वें दिन को बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया, क्योंकि उसमें खुदा की सारी कायनात से जिसे उसने पैदा किया था वो बनाकर फारिग हुआ। अब आप जब देखते हैं ये 7वां दिन है, छठे दिन में क्या क्या बना? या चले टिपिकल आप बता दें कोई मेन चीज जिस पे हम बात कर रहे हैं। नर और नारी को पैदा किया है। कौन से दिन में? छठे दिन में। कौन से दिन में? छठे दिन में। 7वें दिन खुदा किसको पैदा कर रहा है? आदम और हवा को। यानी आदम को आप ले लें, चलें, आसानी रहेगी आपको समझने में। आदम को जब खुदा ने ले लिया तो 7वें दिन लिया या छठे दिन लिया? अरे छठे दिन लिया भाई। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਖੋ ਵੀ ਥੋੜਾ, ਲਾਈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ। ਐ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਣਾ मैं पादरी इंज कर रहे थे तुसी भी शुरू हुई हो, इंज कर रहे थे तुसी भी शुरू हुई। समझिए बातों को, गौर से सुने। छठे दिन पैदा किया इनको, 7वें दिन खुदा ने कुछ भी नहीं किया। क्या नहीं किया? अब आप रेस्ट की बात आती है, गैर कौमें इस पे सवाल उठाती हैं, ए तुहाडा खुदा थक जाता है। अब बताइए, लिखा तो यही है, फारिग हुआ, रेस्ट कर रहा है। तो क्या कहते हैं आप इस बारे में? आपका क्या ख्याल है? आपसे कल कोई पूछ रहे, 12 साल का बच्चा था जिसने मुझसे पूछा था, मुंडा बादा, तो खैर मेरी तो उससे बड़ी अच्छी गपशप हुई। आपसे कोई पूछ ले तो आप क्या बताएंगे? उन्हें क्या तुहाडा खुदा थक जाता है? ये लिखा है ना भाई, फारिग हुआ, रेस्ट किया, थक गया लिखा है। वो पूछते हैं बताइए थक गया की रेस्ट करना ही की जरूरत सी कहन दी, खत्म भी तो करना। क्या कर देगा? जब कोई काम ही नहीं था। और कोई, मैं आपको बताऊं, इसी में सारा काम है जिसमें हमें नजर आ रहा है ना कोई काम। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप इसको सतही तौर पर पढ़ेंगे, बैरूनी तौर पर पढ़ेंगे, ऐसे ही लग रहा है फारिग है बंदा, कोई काम नहीं है। लेकिन आपको मजे की बात बताऊं, पूरी कायनात का काम ही इसके अंदर है, इसके अंदर निचोड़ है। अब आप देखें, इसमें काम कोई नहीं है, समझ रहे हैं आप? काम कोई नहीं, लेकिन क्या लिखा है? 7वें दिन को बरकत दी। काम कोई नहीं, उन्होंने बरकत दे छड़ी, पीछे नहीं दी थी। 6 दिन गुजरे ने। आपको पता है सब दिनों में लिखा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। छठे दिन में लिखा बहुत अच्छा है लफ्ज है। हाँ, जिस दूसरे में तो ओए तू की सुन दे, गौर ना सुन लो। दूसरे दिन में लिखा ही नहीं अच्छा है। हालांकि अगर आप कहना चाहें तो भाई ठीक है, खुदा ने कह, लेकिन आप समझे ना भाई, आप स्टूडेंट है, बाइबल के स्टूडेंट है, चौथी का कायदा थोड़ी पढ़ रहे थे। पढ़ लिया, वे लिया, रटा मार लिया, नकल कर। आप पूछे ना अपने बाप से, 7 दिन तू क्या अच्छा है, एक दिन तू कह दे बड़ा ही अच्छा है, दूजे नु तू क्या है कुछ भी नहीं है। क्यों? वजह क्या है? अच्छा, तीसरे दिन में 2 बार कह दिया अच्छा है, अच्छा है, दूसरे दिन का पकड़ के तीसरे में डाल दिया। अच्छा, छठे दिन जब आदम हवा को बनाया बहुत अच्छा है, आप इसको किंग जेम्स वर्जन में पढ़ते माल के परफेक्ट,
क्या है, एकदम कंप्लीट हो गया। 7वां दिन जब कुछ नहीं हुआ, उसको बना दिया, क्या, बरकत दे दी। बरकत देने के बाद आगे लिखा है उसको मुकद्दस ठहरा दिया। जिसमें कुछ नहीं हुआ उसको मुकद्दस ठहरा दिया। और आगे लिखा है फारिग हुआ। फारिग हुआ का जब आप इब्रानी वर्जन देखते हैं तो यहां पे लिखा है उसने रेस्ट किया, आराम किया, आराम किया। अब ये कौन सा आराम करता फिरता है खुदा? फिर सवाल वही पे आ जाता है। खैर कौमें आपसे पूछेंगी, और बड़े गंदे अंदाज से पूछती है जब वो कुछ पूछती है तो। पानी की जरूरत पड़ती है फिर। कौन नो भी थे अपने आप में भी। क्या आराम करता होगा, क्या जरूरत है उसको आराम की? अजीजों, हम क्या मरकजी आयत पढ़ी थी, हमारा खुदा इब्तदा ही से अंजाम की खबर देता है। शब्बत दुनिया का ऐसा, सब्बत दुनिया का ऐसा निशान आपके सामने है जिसमें खुदा बता रहा है कि जब तुम मेरे साथ होगे तो तुम मेरे साथ आराम करोगे। कहां कर सकते हैं आप उसके साथ आराम? सब्बत दुनिया का ऐसा भेद है, ऐसा मुकाशफा है, ऐसा दिल की तह की बात है। वो कह रहा है कि मेरे दिए हुए हुक्मों पर अमल करो, मैं जो कहता हूं वो करो। मैंने 66 किताबें तुम्हें दी हैं, इनको पढ़ो, इसमें जो लिखा है वो करो, तो मैं तुम्हें अपने आराम में दाखिल करूंगा। जैसे मैं 7वें दिन आराम कर रहा हूं, जिंदा खुदा अपनी बादशाही में आपको लेगा। उसमें आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। क्यों कहता है 7वें दिन ना तेरा लौंडा, ना तेरी लौंडी, ना तेरी मां, कोई कुछ ना करे? क्यों ना करे? क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। इसको आगे चल के और डीपली पढ़ेंगे। लेकिन आप देखें, इसी दिन को खुदा ने मुकद्दस ठहराया, इसी दिन को खुदा ने बरकत भी दी। मैं उसकी बात नहीं कर रहा सब्बात वाले दिन चर्च ला देना, मैं इस कलामे हक की बात कर रहा हूं। डिनोमिनेशन की आपने मुझसे दुनिया में किसी डिनोमिनेशन की कोई तारीफ ही नहीं सुनी होगी, लेकिन मैं मना भी किसी को नहीं करता। क्यों मना? इसलिए नहीं करता क्योंकि आप जाएं संडे को, सैटरडे को चर्चेस जाएं। आप जाएंगे तो उनको सिखाएंगे ना। इतने मैं एतवार नू लाला तुसी इतने आगे तो कौन जाएगा? आपको इसीलिए इन दिनों में बुलाया जाता है ताकि आप सीखें, इसको पढ़े, समझे, इससे आपकी भी मुखलसी हो, आप दूसरों के लिए बाइस से बरकत ठहरे। आपको पता है इब्राहिम बरकत नहीं थी, बरकत तो दी थी उसको, साथ में ये भी कहा तू 22 से बरकत है। 22 से बरकत का मतलब तू सोर्स से ब्लेसिंग की। तेरे से खुदा लोग बरकत पाएंगे। तेरे से लोग जब तुझे पढ़ेंगे, समझेंगे, जानेंगे, तेरी जिंदगी के बारे में समझेंगे, तो लोग तुझसे बरकत पाएंगे। तो डिनोमिनेशन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं जिंदा खुदा के पाक कलाम की बात कर रहा हूं। वो क्या कह रहा है? इस दिन को उसने मुकद्दस ठहराया, इस दिन को उसने बरकत दी, और वो कहता है हम आराम करेंगे। क्या करेंगे? खुदा को आराम की कोई जरूरत नहीं। इसका मुंह तोड़ जवाब पता क्या बनता है? यीशु मसीह कहते हैं मेरा बाप अब तक काम करता है, मैं भी करता हूं। आपसे कोई पूछे आपका खुदा थक जाता है, तो जबूर की किताब में लिखा है वो ना हांगता है, वो ना थकता है, वो ना सोता है। यहां पे क्यों कह रहा है? उसी दिन को आप सुनहरियों को समझिए, आप क्राइटेरिया को समझिए, आप सियाको सबाक को समझिए। ये दिनों की बात हो रही है। 7वें दिन कह रहा है कुछ नहीं करना मेरे भाई, कुछ भी नहीं करना। आपको 6 दिन कर लो जो करना चाहिए, 7वां दिन मैं आपके साथ गुजारूंगा। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है? जिंदा खुदा आपको 1000 साल बादशाही के अंदर लेने की पूरी इजाजत दे रहा है, लेकिन 6 दिन उन्हें नाल बताने पहन गए। जो उन्हें क्या है, जो उन्हें क्या है वो भी वही है। तो आप समझते हैं कि इस कलाम हक को जब आपसे कहा जाता है कि यीशु मसीह थक गए या खुदा थक गए, तो आप ये भी कह सकते हैं कि यीशु मसीह तो कहते हैं मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी रखो, ताकि जहां मैं रहता हूं तुम भी रहो। आपको पता है खुदा एक ऊपर जगह तैयार कर रहा है, और वो कहता है मेरे बाप के घर में बहुत सारे क्या है, लेकिन यहां पर लफ्ज मकान नहीं है। आप जब किंग जेम्स वर्जन इंग्लिश बाइबल पढ़ते तो वहां पे लिखे मैंशंस, कासल्स, जिसका मतलब है महल है। क्या है? कई लोग कहते हैं ये महल तसव्वुराती हैं, हम नहीं कहते तसव्वुराती हैं। जो उसने जमीन पर महल बनाया है वो आसमान ही की तो ब्लूप्रिंट कॉपी है। क्या कहता है? महल ओदे सारे देखो, ध्यान करो खुशी ना। ऐसे महल जमीन पर थे कि वो यीशु मसीह को कहते थे खुदावंद देख कैसी शान और शौकत है खुदा दी। तो सोचे ये सारा ब्लूप्रिंट आसमान का था।
जो जो खुदा ने कहा वो जमीन पर बना, तो आसमान पर कैसा होगा? आप महल में रहेंगे, सोने की सड़कों पे जब वो बोल रहे हैं तो आप चलेंगे। हम मुकाशवा की किताब तो पढ़े। हम यहां पर चाहे टूटे फूटे घरों में रहते हैं, चाहे हम किराए के घरों में रहते हैं, चाहे हम छोटे घरों में रहते हैं, कोई मसला नहीं। हमने इस जमीन पर नहीं रहना। हम शबैत के अंदर जाएंगे, हम खुदा के आराम के अंदर जाएंगे, हम खुदा के सुकून के अंदर जाएंगे। और जब हम खुदा के सुकून के अंदर जाएंगे, खुदा का कलाम अपने अंदर 6 दिन लेंगे, तो 7वें दिन हमारा जिंदा खुदा हमें सोने की सड़कों पर चलाने की पूरी कुदरत रखता है। आज अगर आप 6 दिन खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, खुदा की रोटी को खाते हैं, खुदा के पानी को पीते हैं, खुदावंद खुदा को अपने अंदर ले लेते हैं, इस कलाम खुदा को पढ़ते हैं, तो जिंदा खुदा इसी जमीन पर आपको आसमान की सैर करवाने की पूरी कुदरत रखता है। हालेलुया। तो ये है खुदा की कुदरत और ये है खुदा का सब्बत या उसका शबैत। तो जब आप आगे पढ़ते हैं, ये दिया किसको गया? आदम को। आदम का मतलब क्या है? लोग। और ये लफ्ज है आदमा, इब्रानी लफ्ज है आदमा। आदमा का मतलब है सुर्ख मिट्टी, लेकिन जब आप उर्दू ट्रांसलेशन में देखते हैं, आदम का मतलब है लोग, इंसान। क्या है? लोग, इंसान। हवा क्या है? औरत। औरत को क्या कहा गया नई कलीसिया में, नए अहदनामा में? रूहानी तौर पर। मुकाशवा में भी आप देखते हैं, एक औरत है जिसके सर पर 12 सितारों का ताज है, उसने चांद को ओढ़ा हुआ है, और सूरज को ओढ़ा हुआ है, चांद उसके पैरों तले है। उते को बीबी तो नहीं जिन्हें सूरज माँ। ये इस्तारों में भी खुदा बात कर रहा है आपसे, रूहानी बात मैं कर रहा हूं। यसु मसीह तानू कहना मैं ਤੁਹਾਡਾ शोहर हाँ, तुही मेरी बीवी हो। तही की याद और बीवी है किदों बना गए। वो दुल्हा हमारा कब बनता है? हम जब बन जाएंगे कलीसिया, हम जब बन जाएंगे चुने हुए, हम जब बन जाएंगे ममसू, हम जब बन जाएंगे अलग किए हुए। तो आप जब यहां पर देखते हैं, आदम का मतलब है इंसान, लोग, और हव्वा का मतलब है कलीसिया। खुदा ने सब्बत आदम यानी तमाम इंसान और कलीसिया यानी खुदा के चुने हुए सब के लिए ये सब्बत बनाया है। कुरान मजीद में एक आयत है कि जिन्होंने उसके सब्बत की इज्जत ना की वो बंदर बन गए। वो क्या बन गए? तो खुश नसीब हो तुम्हारे मेरे लिए अली है। तो आपके मेरे लिए पता क्या लिखा है? जो खुदा के सब्बत का इज्जत नहीं करता वो अपनी कौम में से काट डाला जाए, वो मार ही डाला जाए। लो तू ही बांदर तो डर दे पे हो। आपके मेरे लिए और भी ज्यादा काम टाइट किया हुआ है खुदा ने। अब आप रूहानी तौर पे से क्या देखते हैं कि खुदा आदम को कह रहा है, और आदम के साथ हवा है, हवा के साथ इक्लीसिया यानी कलीसिया जिसे कहा जाता है खुदा के लोग, और आदम जो आदम की नस्ल है गैर कौम के लोग। खुदा ने सबको ऑफर की हुई है कि वो मेरे सब्बत में दाखिल हो सकते। कब? जब मसीह पर ईमान लाके उसके कलाम पर अमल करेंगे 6 दिन। आप दूसरी बात जब देखते हैं कि खुदा ने आदम के लिए बनाया, तो 6 दिन आप देखते हैं खुदा ने क्रिएशन की, कायनात को बनाया। अब जब कायनात को बनाया तो आपने कभी ये नोट किया पहले दिन क्या बना, दूसरे दिन क्या बना, तीसरे दिन क्या? पता आपको पता है हम क्रिश्चियन लोग हैं और हम क्रिश्चियनों को ये फिंगर टिप्स पे पता होना चाहिए। 12 शागिर्दों के नाम, 12 कबीलों के नाम संडे स्कूल में सिखाते हैं। पहले दिन खुदा ने क्या बनाया, दूसरे दिन क्या बनाया, और भी बहुत कुछ। 66 किताबों के नाम। पहले दिन क्या बनाया खुदा ने? जमीन और आसमान को पैदा किया। दूसरे दिन दूसरे दिन वो पहले दिन ही रोशनी थी। दूसरे दिन क्या खुदा ने बनाया? आप इससे पता क्या चलता है? मेरे तो पता चलता है तुसी डेली बाइबल पढ़ते हो, है ना? आप लोग आप इससे पता चलता है आप लोग डेली बाइबल पढ़ते हैं, और इससे पता चलता है आपके घरों में कोई मुसीबत नहीं है। उन्हें दो ही उल्टे ले लो काम ऐसा ना होता पे। हम लोग कलाम हक को नहीं पढ़ते। जब नहीं पढ़ेंगे तो परेशान ना हो, वो मारने के लिए बैठा हुआ है ऊपर, फिर मुसीबतों के अंबार लगाता है। हमें यही नहीं पता हम मसीह हैं, हमें यही नहीं पता हमारे खुदा ने क्रिएशन में किया क्या है। आपको पता है कायनात का हर एक मजहब मसीहत की मुखालफत करता है, दिन साथी मनाता है। भाई आप मसीहत की मुखालफत कर रहे हो तो दिन भी आपने लाया, फिर
4 दिन ले आ, 6 दिन ले आ, 20 दिन ले आ, 100 दिन ले आ, करनी आपने बाइबल की मुखालफत है, पर दिन नहाओ ही मनाने ने साथ थी। आपको पता है इसके लेवल का, इसके दर्जे का क्या हिसाब है, इसका स्टैंडर्ड आप समझ रहे हैं? वो कह रहे हैं, चाह रहे हैं कि यार सही नहीं, गलत है, बदल चुकी है, लेकिन नहीं, ईमान भी रेती रखने हैं। पता है इसकी ताकत का, इसकी कुदरत का, इसके जलाल का। वो आपके मुंह पे एक्सेप्ट कर रहा है कि मैं झूठावा, मेरी बुराई कर रहे हैं, पर मैं ईमान भी रेती रखना। बोल भी नहीं रही, कुछ भी नहीं कर रही। दुनिया खुद बोलती है कि ये बदली हुई झूठी किताब है, लेकिन बोलती है हाँ ही आदम दी नस्ल, हाँ कितलोते आए हैं, को बांदर दी नस्ल तो नहीं है। चार्ल्स डार्विन की थ्योरी के मुताबिक तो दुनिया मानती है कि दिन साथ ही हैं, आदम था जिसकी नस्ल से हम हैं। आपके मुंह पे कह रहे हैं कि हाँ हम इस पे ईमान रखते हैं, इसकी इतनी पावर और ये बोल भी नहीं रही। तो आप सोचें इस पहले दिनों को जिनके बारे में उस दुनिया एक्सेप्ट करती है आजादी दिन में, हाँ आदम दी नस्ल जो, हमें उनका ही नहीं पता। पहले दिन खुदा ने, हम चेदा चेदा बता सकते हैं, जरूरी नहीं आप बिल्कुल वर्स टू वर्स बताएं। तो पहले दिन खुदा ने आसमान और जमीन को पैदा किया और रोशनी को बनाया। फिर दूसरे दिन आप देखते हैं कि आसमान की फिजा को जमीन की फिजा से जुदा किया। फिजा को आप देखते हैं, पानी को जुदा क्यों किया? ये पानी, जमीन और आसमान पानी ही सी बेतरतीब था, तो ये अलग अलग किया। फिर आप देखते हैं जब पानी नजर आया, वो जुदा हुआ, तो खुश्की का टुकड़ा नजर आया, तो खुश्की को कह दिया जी जमीन। आपने थोड़ा सा सेंस लगा के काम करना है। 3 चीजें आ गई। अब चौथे दिन, पहले दिन का जोड़ा है चौथा दिन। चौथे दिन क्या बना होगा अंदाजन? चांद, सूरज और सितारे। क्यों? क्योंकि हमने देखा पहले दिन आसमान बना और अंधेरा सी, तो खुदा ने रोशनी बनाई थी। चौथे दिन की हो गया चांद, सूरज, सितारे, सियारे। दूसरे दिन खुदा ने पानियों को जुदा किया, फिजा का पानी और जमीन का पानी बनाया, तो जमीन तक की आ गई खुश्की सा नजर आ गई। तो आसमान का पानी और जमीन का पानी, 5वें दिन जब आप देखते हैं आसमान तक की बनाए गए परिंदे, जमीन अंदर समंदर तक की बनाए गया मछलियां। अच्छा, उसके बाद तीसरे दिन आप देखते हैं खुश्की आ गई। तो खुश्की में आप देखते हैं जो जड़ी बूटियां, दरख्त, हरे दरख्त और तमाम चौपा है, तमाम जानवर बनाए गए, इवन दो कि आदम और हवा को भी बना दिया। है आसान के नहीं? पहले दिन का जोड़ा है चौथा दिन, दूसरे दिन का जोड़ा है 5वां दिन, तीसरे दिन का जोड़ा है 6ठा दिन। क्लियर है यहां तक? पहले दिन खुदा ने चौथे दिन को साथ जोड़ा। खुदा ने पहले दिन जमीन और आसमान को पैदा किया और रोशनी को बनाया, तो चौथे दिन खुदा ने क्या बनाया? अच्छा, इससे एक सवाल भी निकलता है कि जो चौथे दिन चांद, सूरज, सितारे ने, तो फिर पहले दिन शाम हुई, सुबह हुई, तो कैसे हुई? ये भी गैर कौमी और एथियस्ट खास कर ये सवाल, इसको भी देखते हैं। पहले दिन नु जोड़िया तीसरे ना, सॉरी, पहले दिन नु जोड़िया चौथे ना, दूजे नु जोड़िया 5वें ना, तीजे नु जोड़िया 6वें ना। 6 पूरे हो गए, 6 बराबर हो गए? नहीं 6 ही है भाई। अब एक दिन रह गया अकेला, और अकेला दिन कौन सा रह गया? 7वां। उसका जोड़ा क्या हो सकता है? उसका जोड़ा हमारे साथ है ना खुदा। उसका जोड़ा हमारे साथ है, उसका जोड़ा आदम के साथ है। सब्बत बनाया गया आदम के लिए, सब्बत बनाया गया आदम के लिए। खुदा ने जैसे और आदम और हवा को, आप देखते हैं सबसे आखिर में इनकी क्रिएशन है। जानवर छुपा है, सब तो ज्यादा क्रिएशन थल्ले जो एंड ते आ जाते हो, उथे आदम और हवा नु बनाया गया। आदम और हवा दे फौरन बाद 7वां दिन बनाया गया। खुदा चाहता है कि आप मेरे सब्बत में शामिल हो, आप मेरे कलाम पर फोकस करें, आप मेरे कलाम पे अमल करके दूसरों को निजात याफ्ता करें। खुदा ने जैसे आदम और हवा को बनाया, उनको अपने साथ अपनी इबादत में लिया कि देखो मैं खुदा हूं, मेरी इबादत करो। खुदा की इबादत कैसे होती है? मागे मार के, ढोल बजा के, खंजरी बजा के, बाजे बजा के। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं, अच्छी बात है, लेकिन उनको भी तो देखें जो कैद में थे। ये सारी चीजें अगर आपके पास हैं तो अच्छी बात है। खुदा की इबादत का एक ही
स्टाइल है और वो है अपनी रूह भी बचाओ तो दूजे दी भी बचाओ, दैट्स इट, खत्म हो गया। आपको बड़ी आयतें दी जाएंगी, खुदा ने इंसान को इसलिए पैदा किया ताकि वो खुदा की हमद करें। तो हमद है क्या? ये जो आप बोलते हैं ये तो आसमान पे फरिश्ते 24 घंटे कर रहे हैं। मुंह में राम राम और बगल में छुरा। तो ऐसे तो नहीं चलेगा, पंजाबी में चले बाप बेटा ते मार लपेटा, तो ये तो नहीं चलेगा ना। जब तक आपने किसी की रूह नहीं बचाई, बचनी आपकी भी नहीं है। जिन्हें मर्जी बातें कर लो, जिन्हें मर्जी कलाम पढ़ लो, जिन्हें मर्जी चर्चा से चले जाओ, कोई फायदा नहीं। जब तक आपने, अब रूह बचाएंगे कैसे जब अपनी बचेगी? अपनी कैसे बचेगी? जब ये 66 किताबें घोल के पी जाएंगे। तो मजे की बात यह, हमारी इतनी इतनी उम्र हो गई है तो हमने तो कभी इस कलाम को पढ़ा ही नहीं है। तो जब पढ़ा ही नहीं है तो आप देख लें आपका हमारा स्टैंडर्ड क्या है। खुदा ने हर एक दिन का जोड़ा बनाया, आपका और मेरा, हमारे बाओ अजदाद का, हमारी नस्ल का जोड़ा खुदा ने सब्बत के साथ रखा है। किसके साथ रखा है? सब्बत के साथ रखा है। अब एक और चीज जो सवाल पैदा होता है कि जी चौथे दिन ही खुदा ने सूरज चांद सितारे क्यों बनाए? अब आप सोचे, हम एक आम इंसान है या गैर कौम है, साढ़े ज़हन च सवाल आया, खुदा दे ज़हन च नहीं आया होना कि यार मैं पहले दिन रोशनी कर रहा तो मैं चौथे दिन सूरज पे बनाना। आप देखें, सोचें कि खुदा के ज़हन में भी तो ये सवाल आया ही होगा। तो अजीजों याद रखिएगा, खुदा ने जानबूझकर किया। नंबर एक तो आपको जोड़े बताया जाए, नबूवती कलाम बताया जाए कि हर एक दिन का अपने साथ जोड़ा है। दूसरी बात, आप देखते हैं कि खुदावंद खुदा उसकी तरतीब आपको बता रहा है। इसी तरह आप देखते हैं दूसरे बाब में भी आदम और हव्वा फिर से बन रहे हैं। तो मेरा मतलब है थोड़ी पहला भी बनाया तो भी बना रहे हैं, वो आपको मजीद तरतीब बता रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप देखते हैं ज़बूर की किताब में लिखा है 104 उसकी 19वीं आयत में, उसने चांद को ज़मानों के इम्तियाज के लिए मुकर्रर किया। किस लिए खुदा ने चांद सूरज सितारे बनाए? तो वो लिखा है चौथे दिन के बारे में। और खुदा ने कहा फलक पर नैयर हो जो दिन और रात को अलग करें। ये आपको चांद और सितारों के काम बता रहा है। चांद और सितारों के काम बता रहा है, ये नहीं बता रहा कि चौथे दिन पैदा में कीते या चौथे दिन बनाए पहले दिन ही गए सन। आपको उनका काम बता रहा है। वो आपको क्या बता रहा है? उनका काम बता रहा है कि खुदा ने जब चौथे दिन बनाया, चौथे दिन जब खुदा बता रहा है कि नैयर अकबर और नैयर असगर को आपके सामने लाया, तो वो निशानों, जमानों, दिनों और बरसों के लिए हों, ताकि आप जमानों के बारे में, सालों के बारे में, महीनों के बारे में आप इम्तियाज कर सकें। लेकिन चले हम कहते हैं कि जी चौथे दिन ही खुदा ने बनाया, तो मैं कहता हूं ये भी उसने सही किया है। हम क्या पढ़ रहे हैं? हमारा खुदा शुरू ही से आखिरत की क्या देता है? खबर देता है कि नहीं? अब मेरे साथ मुकाशफा में देखते हैं। अब आपने शुरू पढ़ा, अब आप आखिरत पढ़िएगा। आखिरत में क्या लिखा है? जिंदा खुदा फरमाता है, मुकाशफा 21 बाब और उसकी 23 से 24 आयत में लिखा है, गौर से सुनिएगा कि कलाम खुदा में क्या मरकूम है। और मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा। 21वां और 22वां बाब हमेशा याद रखिएगा, ये खुदा की अजली अबदी बादशाही की बात हो रही है। यहाँ जब आप आसमान पे खुदा के साथ होंगे तो वो क्या कह रहा है? मैंने उसमें कोई मकदस ना देखा, इसलिए कि खुदावंद खुदा कादर मुतलक और बर्रा उसका मकदस है। अब टू दी पॉइंट वर्ड से आगे लिखा है, और उस शहर में सूरज या चांद की रोशनी कुछ हाजित नहीं होगी। सूरज या चांद की रोशनी की कुछ हाजित, सूरज और चांद नहीं होगा। क्या होगा? आगे लिखा है, क्योंकि खुदा का जलाल ने उसको रोशन कर रखा है और बर्रा उसका चिराग है। हालेलुया। आपका खुदा आपको पैदाइश में बता रहा है कि पुत्र जे मैं चंद सूरज सितारे नहीं ना पहले दिन बनाए, तो मेरे बेटे च इन्नी कुदरत है ही पूरी कायनात नू रोशनी दे सकी। आप जानते हैं सूरज से कौन रोशनी लेता है? चांद। ये कभी इनकी रोशनी बंद हुई है? इनकी रोशनी कभी बंद नहीं हुई। हम घूमते हैं, हमारी दुनिया घूमती है, इनकी रोशनी नहीं बंद हुई कभी। खुदा ने उनको नैयर बना दिया है, वो चमकते रहते हैं। उनसे रोशनी लेता है चांद, उनसे रोशनी लेते हैं हम जिंदा रहते हैं। इसको रूहानी मतन में देखिए, यीशु मसीह मलाकी नबी की किताब में कहते हैं, आफताब सदाकत जिसकी किरणों में शिफा है। आफताब सदाकत से चांद लेता है रोशनी, चांद से हम लेते हैं रोशनी, और हमें ये आफताब सदाकत जिसकी किरणों में शिफा है आगे ट्रांसफर करनी है। वो दुनिया का नूर है,
اور دنیا کا نور ہی ہمیں کہا گیا ہے، کیا ہم دنیا کا نور کسی اور کو بنا رہے ہیں؟ اگر نہیں بنا رہے تو یہ لمحہ فکر ہے۔ تو خدا نے چوتھے دن پر اگر آپ کو اور مجھے دیا، ایک تو جوڑوں کی تمثیل سمجھانے کے لیے، دوسرا یہ سمجھانے کے لیے، میں ابتدا میں انجام کی خبر دیتا ہوں، اگر چاند سورج ستارے نہ بھی ہوں تو میں زندہ خدا ہوں، میں کچھ بھی کرنے کی حاجت اور قدرت رکھتا ہوں، یہ زندہ خدا کی قدرت ہے۔ لیکن خدا لاجیکل خدا ہے، ان لاجک نہیں ہے۔ اس نے پہلے دن ہی جب روشنی بنائی تو چاند سورج ستارے اسی دن بنا دیے، اور اب آپ کو وہ ان کی ڈیوٹی بتا رہا ہے۔ اب آپ کو بتا رہا ہے کہ اس لیے میں نے ان کو بتایا تاکہ یہ دن کو جدا کرے، زمانوں، مہینوں اور آپ عیدوں کا، لفظ یہاں عیدوں آیا ہے، عیدوں کا امتیاز کر سکے۔ خیر آگے چلتے ہیں، تو چند منٹ آپ کے لوں گا میں۔ خدا نے جب آدم کو بنایا، سبت میں داخل کیا، آپ کے ہمارے ہاں بیٹا کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے یا بیٹی پیدا ہوتی ہے، تو ہم پیدا ہونے سے پہلے کمرے کو سجاتے ہیں یا پیدا ہونے کے بعد سجاتے ہیں؟ پہلے ہی سجاتے ہیں۔ زندہ خدا نے اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے پوری کائنات کو ہی سجا دیا۔ ہاللیلویہ۔ اپنے بیٹے کو پیدا کرنے کے لیے آسمان کو سجایا، زمین کو سجایا، زمین کے نیچے سمندر کی آبی مخلوقات کو سجایا، موسم بنائے، سردی گرمی، سب کچھ خدا نے بنایا اپنے بیٹے کو بنانے کے لیے۔ اور جیسے ہی سب کچھ بنا، بیٹا ہوش میں آیا تو بیٹے کو بتایا میں خدا ہوں، میں ہوں خدا کا پاک سبت، میں نے سبت بنایا ہے تاکہ تو میری عبادت کرے، تو مجھے پوجے نہ کہ کسی اور دے جا کے حکم ماندا رہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے کیسے یہ سبت کو بنایا۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، تو مین ٹاپک ہے، یہ سبت کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے ہے، میرے لیے ہے، کس کے لیے؟ ہم سب کے لیے ہے، اور کوئی؟ کس کے لیے ہے یہ سبت؟ پوری کائنات کے لیے ہے یہ سبت، کوئی بھی آ سکتا ہے۔ سبت کا دوسرے لفظوں میں آپ مطلب دیکھتے ہیں، خدا کی بادشاہی کی بات کر رہا ہوں میں۔ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا سب کے لیے قربان کیا تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو، ہمیشہ کی زندگی پائے۔ لیکن اس سبت کے آرام میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط رکھی ہیں خدا نے۔ سوچے اسی دن میں کچھ نہیں ہوا اور اسی دن کو مقدس بھی ٹھہرایا اور اسی دن کو برکت بھی کہا۔ اب جنہوں نے بدل دیا ہے، خدا نے اس کو 7واں دن کا، اب جسمانی بات کرتے ہیں، جنہوں نے بدل دیا ہے ان کا کیا حال ہونا چاہیے؟ انہوں نے خدا کو کہا خدا تینوں نہیں پتا تیرا منڈا اتوار نو نہیں اتوار نو مر کے زندہ ہویا ہے، تے رومیاں نے اتوار دی چھٹی کر چھڑی پوری دنیا چ، تے او بھی مر کے زندہ اتوار نو ہویا ہے، تے اتوار نو کر لو۔ آپ کو پتہ ہے دانیل 7 باب اور اس کی 21 آیت میں لکھا ہے کہ چھوٹا سنگ مخالف مسیح جو ہے وہ خدا کی قانون کو، شریعت کو، خدا کے کلام کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ بدل وہ بھی نہیں سکتا، بدلنے کی کوشش کرے گا، اور یہی چیزیں بدلی ہیں آپ کے سامنے۔ اسی لیے آج ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یسوع مسیح کس دن پیدا ہوئے۔ اس کا ڈیٹ سے کوئی لینا دینا، لیکن اس کا جھوٹ اور سچ سے ضرور لینا دینا۔ اسی لیے آج ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں روزے کون سے رکھنے چاہیے۔ تو آڈے میرے روزے تو ایک چڑی بھی پار نہیں مار دی، ہماری ماں بہن نہیں بچ سکتی ہمارے روزے سے۔ آستر ملکہ کو دیکھے پوری قوم بنی اسرائیل بچا لی اس نے۔ سمجھتے ہیں آپ سمجھتے اس بات کو؟ آستر ملکہ نے جو روزہ رکھا پوری قوم بنی اسرائیل کو بچا لیا۔ آپ کے میرے روزہ رکھنے سے ہماری ماں نہیں بچتی۔ کیوں نہیں سمجھ آتی؟ کیونکہ اس نے، آپ دیکھتے ہیں آپ نے 10 حکم سنے ہو، پہلے 2 حکم 3 حکم کون سنا سکتا ہے فریکوینٹلی؟ چلے میں آپ کی ہیلپ کرتا ہوں جی۔ صحیح، آپ نے یہ والے 10 حکم سنے، تم میرے ایک خدا کو ماننا، فقط اس کی بندگی، اسی کو سجدہ کرنا، خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا، خداوند کا دن پاک ماننا۔ یہ ٹوٹلی شیاطینی 10 حکم ہیں، ان کا خدا سے کوئی لینا دینا نہیں۔ جو سنی بھائی نے بتایا یہ صحیح ہے۔ آپ کو بتایا جو جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے، لیکن آپ کو دکھایا جو جا رہا ہے دکھاتے تو وہ ہے ہی نہیں۔ وہ گیت ہے تو پہلا حکم خدا ایسے ہی ایسے وہ جی جی یہ کیتھولک کے ہی گیت ہیں۔ تو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں انہوں نے وہی بت پرست کہنے تھے ہی آپ کی کر دے پھرنے۔ ہمارے روزے سے کوئی کیوں نہیں بچتا؟ میں آپ کو ایک گارنٹی دیتا ہوں، اتواڈے محلے تک پوڑ رہی کوئی اس کے لیے رکھے روزہ،
ये पाउडर छोड़ के बाइबल पढ़ना शुरू हो जाए, ये ना पाउडर छोड़ेगा ना बाइबल पढ़ेगा, तो क्या फायदा है ऐसे रोजे का? मसला पता क्या है? मसला तरीकाकार खत्म कर दिया हमारा। बाइबल का जो तरीका है हमें पता ही नहीं है, हमने ना कभी पढ़ा, ना हमारे माँ बाप ने हमें बस पैदा कर दिया, ना उन्होंने कभी बताया। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਦੇਣੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੰਗਾ ਧਿਆਨੇ ਲਗਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ ਰੋਜ਼ੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਰੱਖ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਆਂਦਾ ਇਸਟਰ ਤੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪੈਸੇ, आज तू रखने ने। जी सनी भाई क्या कह रहे थे आप? मेरे ख्याल में 7 से 7 है ना जी, शाम 7 से लेके अगली शाम 7 बजे। आप बाइबल में ये इसकी तहरीर है, आप आस्तर मलका को देखते हो, उन्होंने 3 दिन 3 रात बैक टू बैक रोजा रखा, और ये बाइबल का कानून है, ये कोई आपका मेरा कानून थोड़ी है। हमने पहले क्या पढ़ा कि सानू दसिया जाता रात के 12 भी डेट चेंज होंगी है, खुदा कह रहा है शाम हुई सुबह हुई सो पहला दिन। प्रैक्टिकली आपको मैंने बताया, जिंदा मिसाल कौम बनी इसराइल है। लो, वो आपके कैलेंडर को भी नहीं मानती, वो आपकी ईदों को भी नहीं मानती, तो क्यों वो दुनिया ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਭਿੱਖ ਮੰਗੇ ਆ, तो हम गलत है वो गलत है। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਨਾ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਜ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਵਿਗੜ ਗਏ ਆ, ਤੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਾ खुदा सीधा करना बहुत अच्छे तरीके ना जानता है। आगे जब आप देखते हैं कि हमारे तरीक़ेकारों को बदल दिया, इसलिए तो हमें ये छोटी छोटी अकाइयाँ समझ में नहीं आती। हमें बचपन से अगर सिखाया जाता कि रोज़ा क्या है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है इसका तरीकाकार क्या है, हमें बचपन से ही सिखाया जाता है कि यीशु मसीह किस तारीख को पैदा हुआ है, तो आज हम इतनी बड़ी गुमराही में नहीं होते। गुमराही का मतलब मौत है, और गुमराही जो है वो शैतान इब्लीस पैदा करता है। आप देखते हैं कि खुदा के घर में, खुदा के घर का मतलब क्या है, खुदा के सब्बत का मतलब है खुदा के घर में खुदा के कलाम को सुनना। अब ये मेन पॉइंट है, खुदा का घर कौन है? ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਨੇ खुदा दे घर च दरी कोई नहीं दरी ले आओ, खुदा दे घर च पखा कोई नहीं पखा ले आओ। मुझे क्यूमाबाद से कॉल आई, उन्होंने यार भट्टी गल सुन, मैं हाँ वो यार किंज दा पादरी, मैं की होया, वो कह रहे हैं पादरी साहब खुदा दे घर च सलीब कोई नहीं, सलीब दा हदिया दे दो। आप ही के इलाके का मैं क्या बताऊं अब आप समझते इन बातों को? कहाँ कहाँ से शिकायतें आ रही हैं। क्या करते हैं हम लोग? पैसा पैसा पैसा, नोट चाहिए बस। नोट के चक्करों में खुदा को हमने क्या बना दिया, हमें समझ ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए तो फिर गैर को हमें देख के हंसती हैं। पौलुस रसूल कहते हैं तुम्हारी वजह से हमारे खुदा के नाम पर कुफर बका जाता है। साडियां अपनी करतूतां दी वजह तो साडे खुदा दे नाम ते कुफर बकाया जाता है। गैर कौम की क्या जरूरत है, वो तो हमारी वैसी बड़ी इज्जत करते हैं। वो कुछ और लोग हैं जो जलाते हैं मारते हैं, उनका कॉन्सेप्ट पीछे कुछ और है। तो आप जब देखते हैं कि जिंदा खुदा जो है, खुदा का घर वो हमें कह रहा है तुम जिंदा खुदा के मकदस हो, खुदा का रूह तुम में बसता है। ये जो है ये इबादत खाने हैं। इबादत खाने का क्या मतलब है? जहाँ 2 या 4 या जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से जमा, मैं उनमें हाजिर हूँ। इकट्ठे होकर रफाकत करने, ये बड़ा जरूरी है। उसने कहा इकट्ठे होने से बाज ना आओ। आप यहाँ पे मौजूद हैं, आप ही चर्च हैं, आप ही कलीसिया हैं, आप ही खुदा के चुने हुए लोग हैं। वो सीमट बजरी को नहीं कह रहा, वो आपको कह रहा है। अब वो कह रहा है कि शब्बत लफ्ज को फिर ज़हन में रखिएगा कि खुदा का कलाम खुदा के घर में सुनना, शबैत लफ्ज का मतलब है। अब आ गया सब्बत। खुदा का कलाम तो रहा ये आपके सामने, तो खुदा का कार कौन है? हैं? हम हैं। ये सही कहा, हम हैं। खुदा का कलाम, खुदा का घर, तीसरा काम कीजिए सुनना। अब मुझे बताएं कि अब खुदा का कलाम कौन सुनाएगा? सब्बत का मतलब है आपको खुदा का कलाम सुनाना पड़ेगा। आप खुदा के घर हैं। अब आप खुदा के घर हैं, ये खुदा का कलाम आपको सुनाना है, फिर ही जाके उसके सब्बत में शामिल होंगे, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। बात क्लियर हुई कुछ? ये सब्बत का निचोड़ मैंने आपको निकाल के दे दिया, लेकिन अभी मैसेज पीछे है। आज मैं तेरी जान नहीं छड़नी। क्या कह रहा है खुदा? कि खुदा के घर में खुदा के कलाम को सुनना, खुदा के घर में खुदा के कलाम को सुनना। खुदा का कलाम रहा ये, खुदा के घर रहे आप, तो सुनाएगा कौन भाई? वो ऊपर से आके थोड़ी सुनाएगा, आपको फरिश्ते थोड़ी आएंगे। आपको पता है आपको और मुझे क्या कहा गया मुकाशफा की किताब में? 7 कलीसियाओं को लिख।
बाइबल में लिखा है प्रकाशवा पहले बाब में खुदा के हाथ में 7 सितारे और 7 चिरागदान। ये 7 सितारे खुदा के क्या है? 7 फरिश्ते। आपको पता है वो लफ्ज फरिश्ते नहीं है, वो लिखा है मेरे खादिम है। खुदा आपको फरिश्ते कहता है, द मैसेंजर्स कहता है। ओरिजिनल मतन में वहां लिखा है खादिम। तो खादमों को वो अपने हाथ में लिए घूमता है। बाइबल में लिखा है मैं कौम बनी इसराइल को अपने हाथों पे, जब वो बच्चा था और जब तक वो बूढ़ा नहीं हो जाता, अपने हाथों पे लेके घूमता हूँ। तो कौम बनी इसराइल उसके साथ चलती थी भाई। इसीलिए आप और मैं क्या करते फिरते हैं? आप तो वैसे ही कहते हैं कि ओ दे फारग ने, हम मसीह हैं। हमारी जहालत की इंतहा आप देखिए। तो आप देखें कि आज हम खुदा का घर हैं, खुदा का कलाम ये है और हमने इसको सुनाना है, हमने इसको डिलीवर करना है। तो जब पढ़ते ही नहीं तो डिलीवर कहां से करेंगे? मसीह कहां से हो गए? हम कहते हैं मसीह 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 है। तो आपके और हमारे लिए मुकाश मत्ती 7 बाब में लिखा है तुम में से बहुतेरे कहेंगे ऐ खुदावंद है खुदा, ऐ यीशु है यीशु, सानू क्यों मारने? बदबख्तों मेरी नजरों से दूर हो जा। कहने को तो वो मसीह है नहीं। वो नबूवतें भी कर रहे हैं, वो मुर्दों को भी जिंदा कर रहे हैं, वो शिफाए मौजज़ात भी दे रहे हैं। आप और मैं किसी खाते में नहीं आते। बड़े बड़े नबी रसूलों को फारिग कर रहा है वो। क्या समझते क्यों कर रहा है फारिग? जब आप उसके कलाम की बेहुरमती करेंगे, आप कत्ल कर ले आपका माफ है, आप चोरी कर ले आपका माफ है, आप झगड़े कर ले आपका माफ है, इसके साथ खिलवाड़ करेंगे खुदा के कलाम के साथ, तो आपकी मुआफी नहीं है। इस डिनोमिनेशन की जो मैं बात कर रहा हूं, सबसे बड़ी गुमराही यह है कि उन्होंने कहा कि देखें हम खुदा के कलाम पर अमल कर रहे हैं, हमने इस दिन को रखा है सामने। यह सबसे बड़ी गुमराही है। रसूली कलीसिया क्या करती है? रसूली कलीसिया का मतलब जानते हैं आप? रसूलों के अमाल। हम तो खुदा की बनाई हुई रसूली कलीसिया। यहोवा विटनेस के बारे में कभी सुना है आपने? वो क्यों कहते हैं अपने आप को? मुकाशवा की किताब में लिखा है जब वो आएगा 1,44,000 गवाहों के साथ आएगा। वो कहता है वो हम है, हमारे बारे में लिखा है। इन आयतों को मिसकोट करके एक डिनोमिनेशन बना लेना ये नहीं चलेगा। ये आपको मुकाशफात बताने पड़ेंगे। जब तक आप इस चर्च का मतलब क्या है, जो इबादत खाने सिनेगॉग जिन्हें कहा जाता है, इबादत खाने जहां पे आप कलाम सीखते हैं, इसका मकसद क्या है? कभी सोचा है आपने? क्या मकसद है आपका? चर्च जाते हैं आप लोग, इबादत खाने में जाते हैं, इबादत खाने का मकसद क्या है? क्या करने जाते हैं वहां? इबादत तो घर पे भी कर सकते हैं, आप बाहर भी कर सकते हो। गैदरिंग हो जाती है, चलें गैदरिंग तो, कलाम तो घर पे भी सीख सकते हैं भाई। और कोई है? किस लिए जाते हैं? वो जो करने जाते हैं वो तो सारा घर पे भी कर सकते हैं। आप वहां क्यों जाते हैं? मुकद्दस जगह होती है। लेकिन अगर हम बहुत डीप चले जाएं तो हम कुछ और देखने जाते हैं। क्या देखने जाते हैं? अपनी डीपनेस निकाल दे आज, अपना डीपनेस जो है ना काट दे। मैं वो बात नहीं वही, हम भी वही समझ रहे हैं क्या? तो आप जब कहते हैं कि वो मुकद्दस जगह है, मैं आपको एक बात बताता हूँ पर्सनली। मैं ऐसे इबादत खाने में बैठा हुआ था, उधर ही रोटी चल रही है, उधर ही खाना चल रहा है, उधर ही एक भाई आया इतना चड्डा पहन के, बाइबल निकाली, दुआ करना शुरू हो गए, स्लीवलेस पहनी। अच्छा ठीक है। एक दूसरे इबादत खाने में गया, वहीं पे हम लोग बैठे हुए, बिस्तरे भी वहीं पे लेटो ये थे, लेट गए। और एक तीसरे इबादत खाने में गया, वहां हम बैठ के गपशप कर रहे हैं, चाय पराठे चल रहे हैं, पिछू ही 2 चूहे बड़े ने अंदर, चूहे बड़े ने और चूहे तबाही मचा रहे ने। मैं पासा पीछे की हो रहा है और ये पास पीछे, आपने मुझे बताया नहीं वो नहीं। तो खैर आप देखें, वो बताएंगे लाइव। तो आप देखें अब वो मुकद्दस कैसे है। दूसरी बात, मैं आपको ऐसी डिनोमिनेशन बता दूं जो चपेड़े मार रहे होते हैं एक दूसरे को। आपने देखी है? आपके इलाके के अंदर है, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने नहीं देखी। गालियां दे रहे होते हैं, पुरपट पे कलाम सुनाते सुनाते खल्ले दे रहे होते हैं, देखे कि नहीं? आप मुझे बताएं वो जगह कहां से मुकद्दस रही? वो जगह कहां से मुकद्दस रही? वो मुकद्दस होता तो खुदा उधर ही मार देता उनको। वो मुकद्दस आपको कह रहा है। 7वें दिन को क्या बनाया? मुकद्दस। 7वें दिन का मतलब क्या है? खुदा का आराम, खुदा का घर। तो घर तो आप हैं। आप अपनी दिया हुआ बरकत क्यों सीमेंट बजरी को दे रहे हैं? वो इससे सवाल जवाब थोड़ी करेगा, वो तो आपसे करेगा। पहले थी, अब नहीं, अब आप हैं, वो आपसे पूछेगा।
खुदा ने आपको इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी है, आपको मुकद्दस ठहराया है, आपको पाक किया है। इबादत खाने का मतलब है कि वहां हमारे लोग जाएं तो वहां से शेर बन के निकले, वहां से सूरमा बन के निकले, वहां से सोल्जर बन के निकले, वहां से एलची एम्बेसडर बन के निकले। मजे की गाल है बकौल, इनके वहां से सुअर बन के निकलते हैं। तो इबादत खाने, आप सैमुअल को नहीं जानते, सैमुअल को दिया गया था, एली काहिन को। सैमुअल नबी बच्चा था, उसको बचपन में दिया गया, यीशु मसीह को दिया गया, ये सारे बचपन में देते थे। आज आप किसको देंगे? आज तो ये 13 साल वाले दे आओ, ऐसा आपको सुझाएंगे बुत को चाटना कैसे, थानू चटवा दे रहे थे, चुमवाते रहे। बताइए आप किसको देंगे भाई? अब आप खुद जिम्मेदार हैं। आप अगर घर के सरबराह हैं ना, बड़े हैं, तो खुदा ने आपके हाथों में बरकत रखी है। आप अपना कुर्बान गाह पे कुर्बानी खुद चढ़ा, कुर्बान गाह नहीं तो ले आओ, ये है कुर्बान गाह, ये मज़बा सजाया हुआ है, ये कुर्बानी आपके सामने हम पेश कर रहे हैं, ये आपको भी करनी है। आप घर पे सरबराह हैं तो आप पे ये जिम्मेदारी है। अगर एक आयत मिसाल के तौर पे आपके ज़हन में आती है, अगर कोई बीमार हो जाता है तो बाइबल में लिखा है याकूब 5 बाब में कि कलीसिया के जाके बुजुर्ग को लेके आओ। तो आप समझे इनमें 3 कैटेगरीज हम बात कर रहे थे कि क्या लिखा है, कलीसिया के बुजुर्ग को लाओ ताकि दुआ करे तो वो हील हो। आगे लिखा है वो तेल मल के दुआ करता है, ता तेल लाते दुआवांगे। आपको पता है हमसे पहले ऑलरेडी वो साथ वाले करते रहे, दूसरे मज़ाहिब वाले, वो थोड़ा डॉक्टर हाँ कर लिया, यहाँ तो फिर अहाँ कीता तो वो भी अज तेल और पानी से दुआवा करते रहे, हाँ उन्होंने भी गुमराह कर छड़िया। अब आप देखें याकूब के 5 का बाब में क्या लिखा है, अगर कोई तुम में से बीमार है तो कलीसिया के बुजुर्ग को बुलाएं ताकि उसे शिफा हो। आप बीमार हैं, आपने कलीसिया में से बुलाना है किसी बुजुर्ग को। 3 लोग हो गए। मसला यह है, एक आप है, एक ये कलीसिया है, एक इनमें से बुजुर्ग ये है। मुझे लगा लो, चलो, एक पब्लिक है, एक कलीसिया है, कलीसिया में से बुजुर्ग है, मैं जाकर इन पे दुआ करूंगा ये ठीक हो जाएगा। मसला यह है कि आप आम लोग हैं, ये चुने हुए लोग हैं, चुने में से कोई आएगा तो आप फिर क्या हैं? आप अपने आप को मसीह कैसे कह रहे हैं? क्या ये आयत आप लोगों के लिए? ये आप लोगों के लिए तो नहीं आयत। आप तो कलीसिया के अंदर है ना। 3 कैटेगरीज है ना। अगर कोई बीमार हो तो वो कलीसिया से कहे, तो बुजुर्ग जाए वो दुआ करे और आप ठीक हो। आप तो खुद कलीसिया वाले, आप तो खुद मसीह हैं। खुदा ने कहा तुम दुनिया के नूर हो, तो सभी हैं। ये गैर कौमों के लिए बहुत सारी आयतें ऐसी जो गैर कौमों के लिए हैं, ये आपके मेरे लिए नहीं है। मिसाल के तौर पे आज मुर्दे क्यों नहीं जिंदा होंगे? आज कोई यहाँ पे बीमार है, मैं जाता हूँ, खुदा आज भी बड़ी कुदरत रखता है, लेकिन मसला यह है उस वक्त जो खुदा बड़े बड़े मौजज़ात दिखा रहा था वो गैर कौमों के लिए दिखा रहा था ताकि ये निजात है, ताकि ये ईमान लाए। आप और मैं तो ईमानदार हैं। आप और मुझे को किसी मौजज़े की या किसी निशान की जरूरत है? कौम बनी इसराइल ईमानदार थी कि नहीं? की मांग रहे सनो कहने सन निशान वहा उन्हें कहा तुसी बदकार नस्ल हो तो ਤੁਹਾਨੂੰ यूना नबी के अलावा कोई निशान नहीं दिता जाएगा। वो यूना नबी का निशान एक्चुअली उन पर ही लानत थी, वो मसीह उन पर ही लानत गिनवा रहा था। कभी देखेंगे यूना और इसमें क्या सिमिलैरिटीज थी मसीह में। ਤੁਹਾਨੂੰ तो एक ही पता है ना, 3 दिन 3 रात, इसमें और भी बहुत कुछ है। अब आप सोचें कि खुदावंद क्या बताना चाह रहा है आपको कि आप और हम खुदावंद की कलीसिया हैं, उसके जिस्म का हिस्सा हैं, हम उससे कोई अलग नहीं है। मौजज़ात, यीशु मसीह कहते हैं यहूदी निशान मांगते हैं, निशान मौजज़े शिफाएं निशान मांगते हैं, और यूनानी हिकमत मांगते हैं। आपको और मुझे निशानों की और हिकमत की जरूरत नहीं, हमारे लिए ईमान ही काफी है। पौलुस रसूल कहता है खुदावंद ये कांटा है जरा चुभता है, निकाल दीजिए। उन्होंने कहा मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है, जा चुभता रहेगा, टेंशन ना ले। हम लोग कहते हैं खुदावंद मैं ठीक होवांगा तो मैं शुक्रगुजारी की इबादत करूंगा। आपने जुमले सुने? तो बीमार होते हुए क्यों नहीं दे रहा भाई? फिर अयूब साबिर ही सी ना, सर्दी गर्मी आती रहती है, कोई मसला नहीं। मैं सुख देखूं तो क्या मैं दुख ना देखूं? खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने लिया, उसी नहीं होता। खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम मुबारक। अक्सर सलीबा तो लिया, उसी ने लिया, उसी ने दिया। अब ये उसी कौन है भाई? जो आए थे उसको लिखें।
खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने लिया, खुदावंद का नाम, खुदावंद ने लिया, खुदावंद ने दिया, खुदावंद का नाम मुबारक हो। आप समझ रहे हैं इन छोटी चीजों को, ये आपके लिए बड़ा ब्लेंडर बन सकती हैं। अब यहां सबको पता है आप अर्नस्ट के पास जाते हैं, तो जो अर्नस्ट के पास जाते हैं ना 8-10, उन्होंने अलग अलग जगहों पे धूम भी मचाई हुई है और उनकी टक्कर का भी कोई नहीं है। तो आप समझिए वो कुछ जाहिल के बच्चे नहीं थे जो पूरी पूरी रातें देते थे, आज अपनी अपनी मिनिस्ट्री रन कर रहे हैं वो। चले कोई नहीं, शुरुआत है। आप कभी पूछिएगा, रो सके भी चले जाते हैं सर, तो अभी पूछिएगा रो सके क्यों जानते सर, 2 मिनट में लापा हो जाती है। कलाम को पढ़ें, इसको पढ़ें, ये किसी का तरफदार नहीं है। नेक्स्ट टाइम नहीं पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको यहाँ बिठा के बोलूँगा पढ़ते जाओ, कुछ भी नहीं होगा। तो इस कलाम को पढ़ें, इसको समझें, इसमें बड़े गहरे भेद और मुकाशफात हैं, खुदा के दिल की तह की बातें हैं। आप कलीसिया हैं। सब्बत का मतलब है आप जब तक खुदा का कलाम नहीं सुनाएंगे, नहीं सिखाएंगे, नहीं बताएंगे, आप खुदा के लोग कहला नहीं सकते। अपने मुंह से जितना मर्जी कहते रहें, खुदा को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने आपको मत्ती 7 बाब के बारे में बताया कि जो अपने मुंह से कहता रहता है उसको उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे उसको कोई लेना देना ही नहीं है। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में इस 7वें दिन को ही बरकत दी और उसे मुकद्दस ठहराया गया, जो कि हम जान चुके हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये निशान इस पूरी कायनात में हमें नजर आता है। 7 का आदत जो है ये पूरी कायनात में नजर आता है। मिसाल के तौर पे आप जिस्मानी रूहानी दोनों बता सकते हैं, बाइबल या बाइबल से बाहर। और तू हाले भी पुरानी जिंदगी चाहिए। 7 नरसिंगे आपने देखे मुकाशवा में। आप देखते हैं यशवा की किताब में जब यरू शहर को गिराना होता है तो 7 चक्कर लगाए जाते हैं यरू शहर के, 7 नरसिंगे फूके जाते हैं, 7 मोहरे देखते हैं आप, 7 चिरागदान देखते हैं आप, 7 गजब के प्याले देखते हैं आप, और 7 दिन और कोई क्या 7 तेरे ऊपर स्टार प्लस छाया है। क्षमादान के ऊपर 7 नलियां, आप क्षमादान को देखते हैं, हमारे घर में भी बना हुआ है। और अभी मेरे पास पूरे नोट्स पड़े हुए हैं लेकिन मैं उसे पढ़ूंगा नहीं। बाइबल मुकद्दस की हर एक किताब के अंदर आपको 7 नजर आएगा। 7 लफ्ज किसको जाहिर करता है? कामलियत के अंदर को, कंप्लीशन, कंप्लीट है, परफेक्ट है, कामिल है। आप जब किताबों को पढ़ते हैं, 66 किताबों में से एक किताब ऐसी है जिनमें ना यहोवा का जिक्र है, ना खुदावंद का जिक्र है, ना खुदा का जिक्र है। वो है आस्तर मलका की किताब। आप पढ़ लें सारे बाब, 10-12 बाब है, इतने ज्यादा भी नहीं। ना उसमें खुदा का जिक्र है, लफ्ज ही नहीं लिखा हुआ, कोई और दाएं बाएं से कर देता है कोई जिक्र। ना खुदावंद का जिक्र है, ना यहोवा का जिक्र है, ना एलोहिम का जिक्र है। उसको कैनन में शामिल किया हुआ है। आपकी किताबों के अंदर 66वीं किताब है वो। क्या समझते हैं आप? खुदा हर एक तरीका से बात करता है। खुदा रंगों के जरिए से बात करता है, खुदा पत्थरों के जरिए से बात करता है, खुदा जानवरों के जरिए से कभी देखा कैसे बात करता है? हाँ, वो उसने जुबान दे दी थी ना उसने। किसको? गधी जुबान तो पहले भी थी, खोल दी थी उसकी जुबान। हाँ, गधी बोलना शुरू हो जाती इंसानों की तरह। कभी सुना है? जी। बलक गिनती की किताब जब आप पढ़ते हैं, बल्लाम बादशाह, आप देखते हैं मछली यूना जो है, खुदा आपको बता रहा है कि मैं कैसे इस्तेमाल करता हूं इनको। आप देखते हैं जब पतरस जाल फेंकता है तो 158, वो 158 ही क्यों होती है मछलियां, बकायदा गिनती बताई गई है। खुदा इसी तरह गिनती में, अदद में भी आपसे बात करता है। मुकाशवा में एक बड़ा मशहूर अदद है 666। आदाद में, गिनती में आपसे वो बात कर रहा है। आस्तर मलका की किताब में खुदा, खुदावंद, यहोवा, एलोहिम लफ्ज नहीं है, लेकिन उसमें आप देखेंगे 7 लफ्ज बेशुमार बार आया है, वो खुदा को जाहिर करता है। 12 लफ्ज बेशुमार बार आया है, वो खुदा को जाहिर करता है। 3 लफ्ज बेशुमार बार आया है, ये खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। और 40 लफ्ज बेशुमार बार आया है, ये खुदा की अलूहियत को जाहिर, यानी 40, 12, 3 और 7
یہ سارے خدا کے دیے ہوئے عدد ہیں. 40 مثال آپ کیا سمجھتے ہیں؟ 40 ہے خدا یسوع مسیح نے 40 یار دن تیرے 44 بھی کیتھولک وہ کڑی ہے جڑی پنڈوں نکلے پر پنڈ نہیں نکلے تیرے. کون سے خدا نے آپ کو 40 روزے دیے؟ چلو پہلے تو یہ بات کرتے ہیں. یہ سنتے بائبل میں کسی نے رکھے 40 روزے؟ سنتے ہیں تو وہ 7 سمندر بھی سن رہا ہے پار میں تیرے، یہ 7 پھیرے بھی سن رہا ہے. تو سنا سنایا تو نہیں نا چلتا، نس کے سامنے ہوائی فائر تو نہیں چلتے. 40 دن کا فاقہ. 40 دن کا فاقہ. اور کوئی 40 دن کا تھا ایک دن کا تھا؟ ایک دن کا تھا، 40 دن ایک دن کا اور ایک دن کا فاقہ تھا، 40 دن اس کی لمیٹیشن تھی. اسی تے رات ہی کھا لینے نا جان نو دکھ دے رہے ہیں. اب مجھے بتاؤ رات کو اتنا کھا لینا تو دہی بھی پی لینا، یہ کون سی جان کو دکھ دے رہے ہیں؟ 100 کے کراڑے مار کے یہ کون سی جان کو دکھ دے رہے ہیں؟ یہ جان کو دکھ دے رہے ہیں، جان کو آرام دے رہے ہیں. ہے مخالف مسیح کے؟ نہیں ہے شیعتی. اس گناہ کی کوئی معافی ہے؟ اس گناہ کی کوئی معافی نہیں ہے. رکھی آؤ ایک چرسی بھی نہیں بچنا تیاری دعا روزے تو بچان والے ویلو پوری قوم بچا گئے. فرق دیکھ رہے ہیں آپ بائبل میں اور ڈینومینیشنز میں؟ وہاں جائیں گے پیسہ بھی دیں گے، وقت بھی دیں گے، ذلت بھی اٹھوائیں گے، اور یہ جو بتا رہے ہیں وہ کام بھی کریں گے، حاصل کچھ نہیں ہونا. کلام کو پڑھیے، اس کو 1 گھنٹہ ہی پڑھ لینا 24 گھنٹے میں سے، یہ زمین سے آپ کو ویسی اٹھا دے گا اور اپنی قدرت دکھائے گا کہ میں کیا چیز ہوں. آپ سمجھیے ان چیزوں کو. آستر ملکہ کی کتاب میں کہیں خدا کا ذکر نہیں، لیکن وہ نمبروں میں بات کرتا ہے، وہ رنگوں سے بات کرتا ہے، وہ اشیاء سے بات کرتا ہے. وہ کبھی کسان بن کے آپ کو سمجھا رہا ہے، بیج بونے والا بیج بونے نکلا، تاکہ جڑا کسان پینڈو بندہ انہوں بھی سمجھ آئیے. وہ کمہار بن کے بتا رہا ہے کہ میں کمہار ہوں، میں نے تجھے اپنے ہاتھوں سے بنایا. مٹی والا جڑا بندہ مٹی سے کام کرتا ہے انہوں بھی سمجھ آئیے. سمجھیں ان چیزوں کو. وہ اپنے آپ کو ایلچی بھی کہہ رہا ہے، امبیسڈر. آپ دیکھتے ہیں آج کوئی ایک پریزیڈنٹ ہے، وہ کہیں نہیں جاتا، وہ اپنا امبیسڈر بھیجتا ہے، ایلچی بھیجتا ہے. وہ آپ کو خدا پہلے بتا رہا ہے. اپنا فوجی، فوج میں جو فوج کے اندر ہے سخت دماغ ہے، وہ لوگ بھی سمجھ جائے اس کے کلام کو. وہ کہتا ہے تموتھیوس کے خط میں، اگر فوجی فوج سے واپس آ کے دنیا داری میں پڑھتے تھے تو وہ پھر کائی کی جنگ لڑے گا. آپ نے دیکھا کئی لوگ فوجی ٹریننگ سے بھاگ کے آ جاتے ہیں، وہ پھر فوجی نہیں ہوتے، وہ پھر کچھ اور ہی ہوتے ہیں. آپ ان چیزوں کو سمجھے. خدا ہر ایک طریقے سے بات کر رہا ہے، اور 7 کا عدد پوری دنیا میں آپ کو ملتا ہے. ایک اور آپ کو بات بتاتا چلوں، 7 لفظ جو ہے بائبل مقدس میں بے تحاشا بار استعمال ہوا ہے، لیکن وہ 7000 بار ہوا ہے. وہ ہے لفظ خداوند. اب جب آپ سے کوئی پوچھے، یہاں پھر آپ کے نالج میں اضافہ کرتے ہوئے، اس دنیا کے اندر بائبل مقدس کے اندر سب سے زیادہ لفظ استعمال ہونے والا وہ ہے خداوند. اور خداوند لفظ کا مطلب میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. خداوند لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ 7000 بار ہوا ہے. کتنے بار؟ خداوند. خداوند لفظ عبرانی زبان میں سے کیا کہیں گے آپ؟ خداوند تو کچھ بھی نہیں ہوتا، یہ تو اردو زبان کا ترجمہ ہے. خداوند لفظ جسے آپ اور میں جانتے ہیں. خدا لفظ خدا کسے کہتے ہیں عبرانی زبان میں؟ ایلوہم کس نے کہا؟ یہوہ کس نے کہا؟ چیری بھائی کے اور بھائی کے لیے، دونوں کے لیے تالیاں بھائی، زبردست. خدا لفظ جو ہے اس کو عبرانی زبان میں ایلوہیم کہتے ہیں، اور خداوند لفظ جو اسے کہتے ہیں یہوہ. یہوہ لفظ بائبل مقدس کے اندر سب سے زیادہ استعمال ہوا ہے، اور وہی یسوع المسیح ہے، اور وہی باپ ہے، اور وہی خدا روح القدس ہے. بس ٹائم لائن فرق ہے اس کی. تو آپ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو کہ 7 لفظ کی کتنی زیادہ ترجیح ہے اس بائبل مقدس کے اندر. 7 لفظ. اب آپ نے آرام کا بھی مطلب سمجھ لیا کہ آرام خالی او آرام نہیں. میں آپ کے سامنے چلیں اس کو ہم یہاں مائنڈ اپ کرتے ہیں. آرام کے لیے ایک آخری آیت آپ کو دیتا چلوں. عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب، یہ اس کس آرام کی بات کر رہا ہے میں آپ کو بتاؤں. عبرانیوں کا خط اس کا 4 باب، سنیے گا غور سے یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، اس کو پھر فنشڈ کرتے ہیں. اور اس کی 7ویں 8ویں 9ویں 10ویں آیت غور سے سنیے گا، 11ویں آیت تک پڑھیں گے. اور اگر یشوع نے انہیں آرام میں داخل کیا ہوتا تو اس کے بعد دوسرے دن کا ذکر نہ کرتا. میں آپ کی ٹو دی پوائنٹ ورس پہ بات لاؤں گا. بس خدا کی امت کے لیے، امت کسے کہتے ہیں؟ قوم. خدا کی امت، خدا کی قوم کے لیے سبت کا آرام
बाकी है, सब्बत का आराम बाकी है। क्या बाकी है? ये रोजे अजीम, रोजे अजीम, और क्या कह सकते हैं आप इसे? चले आगे पढ़ते हैं। क्योंकि जो उसके आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा किया। आपके मेरे क्या काम है? दो दो नौकरियां करना, एक नौकरी करना, स्कूलें पढ़ना, पढ़ाना, सोना, और क्या है काम आपके मेरे? आप जब तक ये काम नहीं करेंगे आप उसके आराम में दाखिल हो ही नहीं सकते। और वो कह रहा है अभी आराम बाकी है, हुआ नहीं। समझ रहे इस बात को? इट मीन्स के इस दुनिया को बने हुए कितने साल हो गए हैं? अभी आखिरी भेद पे आपकी नजर पड़वाने जा रहा हूं। कितने? 2 दिन, 2000 साल। और कोई? 2000 साल यीशु मसीह को गए हुए हैं, ये भी सबसे बड़ा झूठ है। और कोई? हाँ, आप ये रोमी कैलेंडर के हिसाब से बता रहे हैं ना। हम इसको तो एक्सपोज कर रहे हैं, हम खुदा के कैलेंडर की बात कर रहे हैं। 2000 साल हुए नहीं, होने वाले, करीब करीब रह गए, 200-250 साल रह गए, तो काफी है। अच्छा, और कोई? खुदा के काम क्या है? हमें खुदा ने काम ये दिए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, हम सब्बत तभी कहलाएंगे और उसके सब्बत में तभी दाखिल होंगे जब किसी की रूह बचाएंगे। यानी कि इस कलाम हक को, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आप इस कलाम हक को पढ़ें। इसको जब पढ़ेंगे ना, ये आपके अंदर ऐसी आग लगाएगा, ये आपको बैठने नहीं देगा चैन से। ये आपको कहेगा कि ये जो तूने सुना है ना, ये इसको आगे जाके सुना। आगे लिखा है, क्योंकि जो उस आराम में दाखिल हुआ उसने भी खुदा की तरह अपने कामों को पूरा किया कि आराम पूरा करके आराम किया। बस आओ हम उस आराम में दाखिल होने की कोशिश करें। ये मुकद्दसीन जो हैं, पौलुस रसूल जो है, आपको और मुझे तंबी कर रहे हैं कि यार आओ असी भी जरा कोशिश करिए उनकी तरह नाफरमानी करके कोई शख्स गिर ना पड़े। गिरने का मतलब है मर ना जाए। नाफरमानी करेंगे तो गिरेंगे, मरेंगे। नाफरमानी करेंगे तो खुदा के सब्बत में दाखिल नहीं हो सकते। नाफरमानी करेंगे तो आप खुदा के लोग नहीं। जिंदा खुदा ने अभी भी ऑप्शन रखा है कि आओ हम सब्बत में क्या करें, कोशिश करें दाखिल होने की। अब मैंने आपसे पूछा कि दुनिया को बने हुए कितने साल हुए? आपने कहा 2000 साल। चले लगभग लगा लेते हैं कि यीशु मसीह को आसमान पे गए हुए अभी हुए नहीं है, लेकिन चले 2000 साल हो गए। ये तो यीशु मसीह को हो गए ना गए हुए। तो उससे पहले मूसा भी थे, दाऊद भी थे, आदम भी थे। कितने साल हो गए अंदाजन? 6000 से सिस्टर जैसिका के लिए जोरदार ताली। 6000 साल। कैसे? आप जब इनकी एजिस को देखते हैं ना, इनकी उम्रों को देखते हैं, उम्रों को जब आप देखेंगे तो आपको वहां से अंदाजा लगेगा। वहां से पक्का कोई नहीं, लेकिन जब बाइबल की बात करें तो ये पक्की बात करती है, ये अंदाजे मंदाजे नहीं बताती। आप देखते हैं आदम से लेकर आप इनकी उम्रों को काउंट करें ना, आदम जब बाहर निकला तो तब से उसकी उम्र काउंट होना शुरू हो गई और 930 साल उनकी टोटल उम्र थी। आगे लगाते जाए, जिन जिन की उम्र ही पैदाइश 5 बाब में देखें सबकी उम्रें लिखी हुई हैं। 10 नस्लें हैं आदम से लेके नूह तक। 2000 साल वो, नूह से लेके यसु मसीह तक 2000 साल वो, कितने हो गए? 4। यसु मसीह के लेके आज तक गालिबन लगा लें कितने हो गए? 2000 साल हो गए। तो कितने हो गए टोटल? कितने हो गए टोटल? तो जड़े साइंस दस दिए मिलियन ट्रिलियन साल पहले कोई कुत्ता था, कोई बिल्ला था, कोई कीड़ा था, कोई इतना बड़ा हो गया, कोई डायनासोर का था, कोई मगरमच्छ था। ये ट्रिलियन साल की थो आ गए भाई। अब आपने ये जो अंदाजा लगाया बड़ा आसान है, कभी इसको कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ 6000 साल। अब ये 6000 साल आप सीख रहे हैं पैदाइश में आखिरत की खबर। आप मेरे साथ सुनिएगा, जब नूह का जमाना था 6 बाप में, खुदा अब इनको मारने लगा है तूफान से। क्या करने लगा है? मारने लगा है तूफान से। लेकिन इस आयत में लिखा है, 30वीं आयत में लिखा है, और खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुजाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है, तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। यानी कि खुदा ये कहना चाह रहा है कि मैं इस ज़मीन को गर्क करने लगा हूँ, लेकिन मैं हमेशा इसके साथ मुजाहमत नहीं करूँगा, क्योंकि इंसान की उम्र 120 बरस की तो है। आप ये देखते हैं इसी बाब के अंदर, पिछले बाब में, ये छठा बाब है, 5वें बाब में 959 साल मतूशला की उम्र है। आगे आप देखते हैं
मतुशला के बाद आप देखते हैं नूह की उम्र, तो नूह की उम्र वो बनी थी 960 साल जब वो मरे। उसके बाद आप देखते हैं लमक की उम्र, उसके बाद आप देखते हैं आदम की उम्र, सैत की उम्र, केनान की उम्र। इनकी तो उम्रें बहुत ज़्यादा लिखी हुई हैं, 910 बरस। एक की लिखी है 830 बरस। ये 5वें बाब की बात हो रही है। छठे बाब में जब आते हैं तब 120 साल। कितने? चलें, अगर हम कहते हैं ये तो पिछले 5वें बाब तक की थी, छठे में अब आई तो तूफान के बाद कम हुई, लेकिन तूफान के बाद भी आप देखते हैं कितनी कितनी उम्र है। ये 120 क्या है? क्या 120 इनकी है? क्या कह रहे हो? उसके बाद भी लंबी उम्रें हुई हैं। बहुत उम्रें हुई हैं भाई, ये कुछ भी नहीं है। उनके बेटे ये फिर क्यों लिख दिया खुदा ने? कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर करिए। इस 120 को मल्टीप्लाई करें 6 से, नहीं सॉरी, 120 को मल्टीप्लाई करें 50 से, 6000 कितना बनता है? सारे कर लें, सारे करके देख के तसल्ली कर लें। 6000 बन रहा है। दुनिया को बने हुए कितने साल हुए हैं? कुछ समझ आ रहा है आपको? 6 दिन हो गए। अब आप ये देखें, इसको हमने जो 120 के साथ मल्टीप्लाई किया, 50 को 50 के साथ ही क्यों किया? ओरिजिनल बाइबल जब आप पढ़ते हैं, ओरिजिनल मतन की जब मैं बात करूं, इब्रानी बाइबल पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है 120 यूबली के साल, 120 यूबली के बरस। 120 क्या है? यूबली, जिसे आप इंग्लिश में जूबली कहते हैं। इब्रानी जुबान में जे नहीं होता, जैसे मिसाल के तौर पे सॉरी वाई नहीं होता। जैसे हम यरूशलेम पढ़ते हैं, वो जेरूसलम कहते हैं। हम यहोवा पढ़ते हैं, वो क्या पढ़ते हैं? जहोवा पढ़ते हैं। तो यहां पर लिखा है यूबली के बरस, यानी कि जूबली के बरस। जूबली किसे कहते हैं? नहीं, 50 को 100 को क्या कहते हैं? नहीं, गोल्डन सिल्वर की बात नहीं हो रही। 50 को कहते हैं जूबली, 100 को कहते हैं सेंचुरी। वो सिल्वर और गोल्डन का मतलब अलग हो जाता है। सिल्वर जुबली 25 साल होती है, गोल्डन जुबली 50 साल होती है। लेकिन लव्स टिपिकल जो जुबली है, इसका आप अहबार 23 बाब में पढ़ेंगे, पूरा पैसेज है कि जुबली जो है 50वें साल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 50वें साल को कहा जाता है। अब जब यहां पर इब्रानी जुबान में लिखा है कि 120 जुबली या यूबली के साल है, तो 50 को आपने मल्टीप्लाई किया 120 से, तो क्या निकला? 6000। इस वक्त दुनिया को बने हुए 6000 साल हो चुके हैं, तो बाकी क्या है? कितने दिन थे टोटल? टोटल दिन कितने हैं? 7। बने हुए कितने हो गए? 6। दुनिया को इस वक्त बने हुए 6000 साल हो चुके हैं। बाकी कौन सा दिन है? सब्बत का आराम अभी बाकी है, जो आपने नए अहदनामे में पढ़ा, इब्रानियों के खत में। उस सब मसीह के लिए एक बार जोरदार ताली। अब आप 7 दिनों को हजारों में कैसे गिन रहे हैं? मैं आपसे कह रहा हूं 6 दिन। मैंने आपको दूसरी क्लास पे पढ़ाई थी 2 आयतें, एक पतरस के खत में से, एक जबूर के खत में से। एक दिन 1000 साल के बराबर है और एक दिन 1 साल के भी बराबर है। कौम बनी इसराइल की जो असीरी थी वो 40 दिन की थी, लेकिन खुदा ने उसको एक दिन से 1 साल पे मल्टीप्लाई किया, 40 साल हो गई। इज़िकियल की किताब में लिखा है, ज़बूर की किताब में लिखा है, मेरा दिन 1000 साल के भी बराबर है। तो यहां पे आप ये फॉर्मूला फिट करेंगे कि खुदा के 6 दिन 6000 साल के बराबर है, और वो जो एक दिन रह गया सब्बत का आराम बाकी है, वो कौन सा है? 6000 साल हो चुके हैं, कितने रह गए? ये है असल गेम सारी। ये है सब्बत। यसु मसीह की 1000 साल बादशाही जो है, ये है खुदा का पाक सब्बत। तो उसमें मैं और आप दाखिल कैसे होंगे? हम तो जानते ही नहीं उसे, ना हमने किसी और को जनाने की कोशिश की, उनको कहा कि आप समझें इस बात को। इस दुनिया को बने हुए 6 दिन हो चुके, और आयत को ले तो 6000 साल हो चुके। 7वां दिन अभी बाकी है, सब्बत का आराम बाकी है। उसी को तो मुकद्दस ठहराया है, उसी को तो मुबारक कहा है।
एक होता है, ये नहीं कि दूसरे दोनों को लानती कहा है, उनको भी अच्छा कहा है, लेकिन आप देखें एक को अच्छा ही नहीं कहा, बाकियों को अच्छा कहा, आदम वाले को बहुत अच्छा कहा, छठे वाले इसको मुकद्दस कह दिया। ये पता क्या कैटेगरी सारी है पॉजिटिव, लेकिन है क्या? अच्छा, बेहतर और बेहतरीन। आपसे कोई चीज पूछे, मैं आपको 1 लाख दूं, 10 लाख दूं या 40 करोड़ दूं, तो आप क्या मांगेंगे? तो आप समझ रहे हैं, अच्छा, बेहतर और बेहतरीन चाहिए हमें। तो खुदा आपको कह रहा है कि ठीक है, मैंने दिनों को अच्छा कहा, दूसरे को नहीं कहा, वो अभी हम नेक्स्ट देखेंगे क्या सिलसिला, उसको क्यों नहीं कहा। तो आप देखते हैं कि छठे को मैंने बहुत अच्छा कहा, लेकिन सातवें को तो मैंने बेहतरीन ही कह दिया, परफेक्ट ही कह दिया, कामलियत का आदत कह दिया। आपको पता है ये 7 सब्बत जो है, ये सब्बत अगर आपके पूरे ना हो, सब्बत अगर आप मानना छोड़ दें, तो आपको खुदा का रूह भी नहीं मिल सकता। मिल सकता है कि नहीं? कैसे नहीं? अमल ही नहीं तो हाँ, करते, पादरी ने क्या है, कैसे नहीं मिल सकता? उस पे अमल ही नहीं हो रहा इसलिए। आपने ईद पेंतिकोस्त का नाम तो सुना होगा, कितने दिनों बाद आती है? 50वें दिन होती है, 4 दिन के अब सवाल पर गौर कीजिए, कितने दिनों के बाद आती है? सवाल जवाब आप दोनों ने सही दिया, लेकिन इसको जरा सोचिए मैं क्या पूछ रहा हूँ। सवाल को समझ जाएंगे, जवाब आसान हो जाएगा। हाँ, 49 के बाद 50वें दिन आती है, लेकिन 49 दिन के बाद आपको पता है वो काउंटिंग करने का खुदा ने फॉर्मूला क्या दिया है? अच्छा, किसके 49 दिन के बाद आती है? नहीं, के बाद ना जब वो जाते हैं तो आसमान में उठाए गए आसमान पर जब उठाते नहीं, नहीं, इधर साउथ के बाद भी नहीं। भाई ने कहा मसलूब होने के बाद, सिस्टर ने कहा इधर से। जी उठने के बाद सिस्टर के लिए जोरदार तालियां। ये भी गलत। इसीलिए बता दिया। लगाए लगाए, अच्छी बात ये है ना कि आप जवाब देते हैं, ये अच्छी चीज है। आप ही बता दें। नहीं, नहीं बता। फिर उसने सोना है। यार तेरा बड़ा मसला उठ है। पहले फलों की ईद, यही फर्क है जब हमें खुदा की शरीयत का नहीं ना पता होगा। बाइबल में लिखा है अब हम सीख चुके, अब हमें उस्ताद की जरूरत नहीं है। ऐसे ही है, साढ़े पादरी पता की कहते हैं, शरीयत उस्ताद सी, हुन उस्ताद की जरूरत नहीं। तो भाई पहली बात तो तुमने ये 66 किताबों में से 39 किताबें पढ़ी भी हैं, इसमें है क्या? आपको खुदा की ईदों का ही नहीं पता, तो आपको कैसे पता चलेगा ये पेंटिकोस्ट कब आएगी? आखिरी बात आपसे कर रहा हूं, यीशु मसीह जिस दिन मरे, मरने की बात नहीं हो रही, जिस दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, पहले ईद फसा, फिर उसके बाद बेखमीरी रोटी की ईद कब्र में रखे गए, फिर उसके बाद है पहले फलों की ईद, जब वो मुर्दों में से जिंदा हुए। अब जब जिंदा हुए, अब जब ईद साउद है, ईद साउद और पेंटिकोस्ट में 10 दिन का फर्क है। यीशु मसीह 40 दिन तक नजर आते रहे। कितने दिन तक नजर आते रहे? 40 दिन तक नजर आते रहे। 10 दिन के बाद वो ईद पेंटिकोस्ट थी, यानी 50वें दिन। इसको आपने गिनना है जब वो जिंदा हुए थे, पहले दिन, जब वो मरियम मगदलीनी को नजर आए थे, कब्र खाली थी। कब्र खाली से रह के 7 सब्तों तक काउंट करना है आपने। कितने सब्तों तक? आपके इस ईद पेंतिकोस खुदा के रूह हासिल करने में भी सब्तों का काम है। और ये आपको जब जिस उस्ताद की बात हम करते हैं ना, शरीयत, ये उसमें लिखा हुआ है। 7 सब्तों को गिनेंगे तो तभी क्या कितने बनते? 49 दिन के बाद 50वें दिन जो है वो ईद पेंतिकोस होती है, और इसे हफ्तों की ईद भी कहा जाता है। जब बेस ही हमारी नहीं होगी, डायरेक्ट पीएमटी जो कुंडा लांगे साड़ के मरांगे। बेस बुनियाद नहीं है हमारी, बुनियाद खुदा का। अब हम कहते हैं ना कि ये शरीयत खत्म होगी, याद रखिएगा खुदा का ओल्ड टेस्टमेंट जो है या न्यू टेस्टमेंट जो है, ये खुदा के 2 होंठ है। ये होंठ बोलेंगे तो समझ आएगी, 2 होंठ होते तभी बोला जाता है। आप कैसे कह सकते हैं मैंने इसको पढ़ा नहीं, मैं नए अहदनामे का स्टूडेंट हूं, मैं फजल का स्टूडेंट हूं? तो फजल तो भाई मेरे तालीम ही पुराने अहदनामे की है, नई कहां से आ गई? झूठ पर झूठ पर झूठ पर झूठ बोले जा रहे। मसीह के आने से फजल नहीं हुआ, क्या हुआ है? गुस्से रहे कर।
मसीह के आने से फजल पर फजल हुआ है। फजल है ऐसी ते आदम नु छड़ छड़िया ही, ते फजल है ऐसी ते लूसीफर नु हाले तक छड़िया है। आपने की थी ना वीडियो शेयर, हाँ शहजाद, उसको मारा ऊपर क्यों नहीं खुदा ने? खुदा एक खानदान की शक्ल में रहना चाहता है, उसको उसी वक्त वो मार सकता था, लेकिन फिर उसकी पूजा होती डर के मारे। तो खुदा जब मारने पे आता है ना, तो मैं छोटी सी 2 मिसालें दूंगा, अयूब साबिर को देख लें और पौलुस रसूल को देख लें। फिर लोग डर के उसकी इबादत करते हैं, ये उसका फजल ही था जो उसको छोड़ा हुआ है, वो उसकी मर्जी नहीं मानता और मानेगा भी नहीं। वो आदम के ऊपर फजल ही था जो उसको छोड़ दिया। तुहाडे मेरे ते फजल ही जेड़े लगे फिरने आ, वरना तुहाडे मेरे लिए क्या है, मेरा कानून नहीं मान रहे, मेरी कौम में से काट डाला जाए। पर मजे की बात बता क्या है, हमें वो सासत इशोर भी कर रहा है कि हमारा स्टेटस क्या है। वो कहता है मुर्दों को अपने मुर्दे, ये मरे हुए ने, ये मरे हुए हैं। इसीलिए तो हम आखिर में कहेंगे नूह के ज़माना में आपको नहीं लगता कि लोग मरते होंगे तो वो आवाज़ें देते होंगे? आपको पता है बाहर से ही बंद क्यों की गई कश्ती? किसने बंद की थी बाहर से? खुदा ने बाहर से बंद इसीलिए की थी, मेरे बंद किए हुए को खोल, नूह दा दिल जड़ा ना भर जाना है, इन्हें अंदर खिंच लेना है। और ऐसा था, बिल्कुल ऐसा था आपके सामने। सदोम और अमोरा में औरत ने पीछे मुड़ के देखा था। कुछ लोग कहते हैं लालच को देखा, कुछ लोग कहते हैं उनके खेत खलिहान। पर मैं ये कहता हूँ उस वक्त जो बर्बादी हो रही थी ना, वो कभी आप सोच के देंगे, तसव्वुर करके देखें। आसमान तो हवाई फायर करो तो एक गोली आगे बजे ना तो बंदा मर जाता है, फारिग गोली होती, कोई कुछ भी नहीं होता। यहाँ वो लाइफ टाइम के लिए आपके जिस्म के अंदर रहती है। तो सोचें आप पैरालाइज हो जाते हैं, फालिज हो जाता है, तो सोचें जब आसमान से मन मन का ओला के गिरता होगा, आग से भरा हुआ, जमीन तो आपकी कांप उठी होगी। तो बस खुदा ने कहा था पीछे नहीं देखना। पता क्यों नहीं देखना? वो मारता इस तरह है, आप और मैं देख भी नहीं सकते, देख के मर जाएंगे। देख के ही क्या होगा? मर ही जाएंगे। और वो देख लें वो मर ही गई, अब उसकी मार को भी हम देख नहीं सकते। तो इसलिए वो कह रहा है कि 6 दिन हो चुके हैं, 7वां दिन सब्बत का आराम है जो कि अभी बाकी है। उसमें दाखिल होने के लिए कुश्ती करें, उसमें दाखिल होने के लिए लड़ें। बाइबल में लिखा है जो ज़्यादा ज़ोरावर है वो छीन के ले जाता है। ज़ोरावर बनिए, रूहानी, जिस्मानी नहीं। रूहानी बने, जिस्मानी खुद ही कर देगा वो। तो रूहानी बनिए ताकि खुदा के कलाम को आप लोग समझें। तो आपकी जब 7 सब्तों को नहीं आप गिनेंगे, 7 सता 7 सते 49, 7 सब्तों को गिनेंगे तो 50वें दिन जो है वो आती है ईद पेंतीकोस। खुदा का रूह जब वो कहते हैं ना नाजिल हुआ था माल 2 बाब में, तो ये 49 दिनों के बाद हुआ था। आप सोचे आपकी न्यू टेस्टमेंट की जो ईदें हैं उसके अंदर भी सब्बत का रोल है। आपने कभी पढ़ा है दानियल मत्ती 24 बाब में लिखा है कि जब खुदा मारने को आएगा तो अफसोस उन पर, जो 2 लोगों पर अफसोस हुआ है। अफसोस उन पर जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिलाती होंगी, और अफसोस के जो उस दिन दुआ करो कि सब्बत का दिन ना हो। आपको बत्ती में भी बता रहा है, आपको मैं आखिर में मुकाशफा में भी आपको ले जाऊंगा। कौन कहता है ये खत्म हो गया है? कौन कहता है ये बदल गया है? पता है कौन कहते हैं? जो शयातीन के बेटे बेटियां हैं। बड़ी तमीज़ से मैं ये लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, वरना दूजा भी कर सकना। जो शयातीन के बेटे बेटियां हैं वही इसको बदल भी चुके हैं, वही इसको ख़त्म भी कर चुके हैं। बस यही कर रहे हैं। खुदा के कलाम को पढ़िए। खुदा का सब्बत ये नहीं कि आप किसी दिन जाके इबादत करें। खुदा का सब्बत ये है कि आप रूहों को लेकर आएं। यीशु मसीह कहते हैं सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। सब्बत के दिन नेकी करना रवा है। खुदा ने आपको और मुझे आज खुदा का सब्बत बनाया हुआ है। हमने खुदा का कलाम फैलाना है। हमने, इससे बड़ी नेकी क्या हो सकती है कि आप खुदा के मुंह का कलमा किसी के सामने पेश कर रहे हैं और वो हमेशा की जिंदगी हासिल कर रहा है। कौन सी जिंदगी हासिल कर रहा है? हमेशा की जिंदगी हासिल कर रहा है। तो इससे बड़ी नेकी और क्या हो सकती है? सो खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। खुदा हमेशा आपके साथ हो। खुदावंद आप सबको अपनी पनाह में रखे। जय यीशु दी।